Good evening, namaskar, adab. So, welcome to our one and only Mythbusters evening show, weekend show, where we invite a celebrity, and this time we are inviting none other than Kashish Methwani. She is huge. Presenting our new queen, Miss International India. Lovely congratulations to Kashish. She is Miss India International 2023. Hello Kashish, how are you? Hi Rahul, I'm doing great and thank you for having me here. So it was indeed our pleasure, Kashish. So I'll take few minutes to introduce Kashish. She is Miss India International 2023 and she'll be representing India in Miss International 2023 December. That'll be happening in Japan. Not only this, her credential carries much more things out of this. She is NCC cadet and she has been chosen best NCC cadet out of 15 lakh participants, and she was awarded by Honorable Prime Minister Narendra Modi. She is a trained Bharatnatyam dancer. She plays tabla. She is a national level pistol shooter. She's based out of Pune and she is completing her education in Bangalore. Kashish, you're doing many things together. You're doing many different things together. How is that possible, Kashish? Don't you feel a little messed up? No, actually I think I'm doing just enough. When you're doing the things you love, when you're doing the things that you're very passionate about, it doesn't feel like messed up or mixed up. I think it gives you so much of happiness. When I play tabla, when I dance, it actually is meditative for me because it allows me to get away from all the, hustle and bustle of daily life and rejuvenate myself. Whereas following my other passions, either career-wise or dream-wise, allow me to live a very fulfilling life. So when I follow all of these things, I think I'm just going there and doing everything that I've dreamt of, and it just feels right for me. That's so fantastic of you, Kashish. Kashish, before getting title and after getting title, things really change. How was that change? Miss International India 2023 is contestant number 10, Kashish Methwani. Presenting our new queen, Miss International India. Well, some aspects change, some aspects remain the same. The one thing that I'm really grateful for is all the love that I've received since the day I won. The day I was announced from people around me, and there's this one aspect called homecoming. So when I came back, I met everybody at the airport. The chants of India, everybody just saying India. I think that's when you really realize that something has changed. Because now you don't just represent yourself, you represent the entire population of this country. So I think things have changed in that aspect, but I mean I'm still the same young Kashish with the same aspirations, same motivation, same dedication. This time to get the crown back, this time for our country, and hopefully become the first Indian to win international. So keeping my finger crossed, Kashish, all the time. So Kashish, pistol shooting, it's very difficult. I cannot imagine a pretty girl like you holding a pistol in her hand. So how that came from? Well, for me, pistol shooting was a very fluke event. I'm a basketball player, and that is what I've played my entire life. I mean, since I was a child, I was playing basketball in my colony and as I grew up. Wasn't trained professionally, didn't get any coaching, but I joined my college basketball team, and that's how I started learning. Later on, when I came to my college, I realized there is no basketball team and did want to pursue an individual event. That's when I tried out different things, and while I was trying out different sports, I realized pistol is something that really, called out to me, because as much as we think pistol is a very aggressive, shooting. Right. When you think of shooting, you think it will be a very aggressive sport. But it's contrary to that it's actually a very meditative sport.
You need the calm of a samurai, the calm of a Buddha, and the agility of a samurai. Because you need to make instantaneous decisions. If the target is there, your alignment is there, you shoot. But you also need to be calm because movement increases the chances of you not hitting the target. It's just a mixture of everything, and it always feels so meditative to me. I can practice for hours and it doesn't feel like time has crossed at all. Right now it's on a bit of hold because I'm focusing on this journey, this aspect of my life. But soon in the future I do want to continue. I've had the opportunity of playing in nationals and I hope I can represent India there too. Oh my god. So, indeed, I'm keeping my finger crossed you'll get a chance to represent India once more in another, in another aspects. So, Kashish, we'll talk about December 2023 in Japan. What's going on? Well, that is the end goal. I mean, that is what leads up to all the events will lead up to that day. It is something that I've dreamt of for a very long time. And I'm preparing for that every day. I'm learning so much. I know that over there, a lot of people will come from different countries, bringing their own culture, own upbringing, and I hope that I can bring my country along with me and I can make my country proud. I'm doing everything right now, preparing myself. And let's see, I hope it ends up well for our country and for me. And hopefully I can make everyone proud, everyone who's been associated with. You seems to be a very good speaker. You're very spontaneous. I'll talk about that particular moment when you're facing millions of people and you'll be asked questions. That has to be impromptu. You have to improvise your mind. You have to improvise your brain. How you're preparing yourself for that? Well, for Miss International, there's not a question answer round, there's a speech round, so that there is a place where I'll get to use my voice to, channel my personality. I think that's a time where people get to know you a lot, and that's one of my favorite aspects of the competition because I think that's a time where I get to show who I am through my voice and through the way I talk, through the way I connect to the audience and the judges. Apart from that, since my childhood, I've always participated in debates and elocutions, and I think I owe it to my parents, but I have always loved the stage. So you give me a mic, and I'll be the first one up there, and the stage is where I feel I belong, it's where I feel at home. So that is something that I really like. So that part doesn't scare me. I think that is the part that I really love, and I can't wait to do it. That's so good of you, Kashi. It seems like you're a very good speaker. So again, keeping my finger crossed, you'll do absolutely fine. So since we are on the conclusion, Kashish, a small message for the youth. Since you're an icon, people listen up to you, people aspire to become like you. So a small message for them. Well, one thing that I'd like to say to everyone out there is I know that we're all different people, we're all unique, we all have our own dreams, and I need everyone to remember that our dreams are valid, your dreams are valid. So if you have dreamt of something, it can be anything. Everybody will have different things. Maybe some people will accept your dream. Maybe the society might not support you. You have to show up and put in the work because it's your life and you are in control. Often we're in situations or sometimes in circumstances where we think it's the circumstances that are controlling us. Sometimes people are not dealt the same card. We don't always have the same opportunities. But if you remember that it's you who control your life, you can bounce back anytime. All you have to do is keep putting in the work every day and moving an inch towards your goals. You don't have to suddenly reach there. It's not going to happen suddenly. It's going to happen little by little as you put in the effort. And never ever think that your dreams are not valid. It may seem far-fetched, but that's alright. If you don't dream big, then you won't reach there, right? Aim for the stars and you'll reach the moon. But if you aim for the moon, where will you reach, right? So dream of as big as you want to. And remember, even a caterpillar, we never think it will fly and turn into a butterfly. Just like that, your dreams will also come true and you will also fly and achieve everything that you've ever dreamt of. Just keep working towards your goals and always believe in yourself. So when people aren't celebrating you, you go and celebrate yourself. When people aren't encouraging you, you encourage yourself.
because you have to be your own motivation. Nobody else owes you anything. If you think you deserve more, then you have to go out there and claim it, because it's your life and you decide what you want to do with it. I think that's a small message that I have, and I hope everybody who's watching this gets everything that they've ever dreamt of. Thanks a lot, Kashish. What a soulful message that Kashish has given. Dream big, think yourself big, and one day you will achieve. Keep pushing yourself, keep motivating yourself. If you're surrounded by nobody to motivate you, so keep motivating yourself. Think big as you can, and one day you will achieve. That's what Kashish said, and she is a real example for that. She dreamt big, and she is big right now. So this was Kashish Methwani, Miss India International 2023. She'll be representing Miss International 2023 in December, Japan. She's an NCC cadet. She's an awarded NCC cadet out of 15 lakh cadets. She has been chosen out one, and she is a trained Bharatanatyam dancer, a pistol shooter, many things that she is doing. So Kashish, thanks a lot for sparing a time for us, and all the best for December 2023. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was really nice talking to you and being here. Thank you, Kashish. Thanks a lot. गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। तो मैं हूं आपका होस्ट फॉर दिस इवनिंग, राहुल। और जैसा कि आपको पता है कि मिथबस्टर के हर एक वीकेंड्स में हम बुलाते हैं एक सेलिब्रिटी, और इस बार जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ही इज नन अदर देन हल्क हिमसेल्फ। जैसा कि टीजर देखा होगा, आपको खुद ही पता चल गया होगा, ही इज मेहुल राठौर। तो मेहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने ऑडियंस को मेहुल सर के बारे में बता देता हूं। मेहुल सर, ही इज ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन मिस्टर गुजरात कॉम्पिटिशन। वाइजैग में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था मिस्टर एशिया एंड मिस्टर वर्ल्ड ट्रायल्स का। He is a certified and sponsored athlete of Vita Health Supplement and an official athlete of Aeron Vessel. आप अगर इनसे मिलोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, he is Hulk himself. सर, मैंने पर्सनली आपको देखा है, मैंने पर्सनली मिला है। दिस बॉडी बिल्डिंग करियर रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड एक बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सर, कैसे मेंटेन कर लेते हो सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राहुल जी इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली जस्ट जो आपने बताया पहले कि बॉडी बिल्डिंग एंड इवन फिटनेस भी, इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। कि ये ऐसा नहीं है कि आपका 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का वो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है। इसके लिए आपके न्यूट्रिशन में, आपके वर्कआउट में वो डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट सर, राइट सर, राइट सर। लाइक सर, आपने ये शुरुआत कब करी? कब आपको ऐसा लगा कि यू आर फिट फॉर बॉडी बिल्डिंग? एक्चुअली शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। मैं जब इंडस्ट्री में नए आया, उससे पहले से ही मुझे ये पैशन था बॉडी बिल्डिंग का। वन एंड ओनली आर्नोल्ड सर तब लोग बस तब सब लोग वो पिक्चर्स में या फोटोज में देखते थे, लेकिन तब ऐसा था कि हम लोग वो जिम की फी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो बस घर पे ही वो शौक था, वो पुशअप मारना, पुलअप्स करना, वो सेंटर टेबल से बेंच डिप्स करना, बस ये सब चलता था पहले। वो पैशन ऐसा था कि बस उसी में इन्वॉल्व थे ज़्यादा। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, क्रिकेट में। एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट तक खेला भी हूँ क्रिकेट में भी। ओह माय गुडनेस, मल्टीपल जीनियस सर। तो तब से वो शौक था। तो वो बोलते हैं ना कि पहले से ही थोड़ा बेस तो ऑलरेडी सेट था, कि घर से ही वर्कआउट अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी थे। फिर 2011 में एक्चुअली प्रोफेशनली फील्ड स्टार्ट किया था एज अ कोच मैंने। पहले गांधीनगर से अहमदाबाद थोड़ा अप डाउन होता था, क्योंकि गांधीनगर में वैसे लग्जरियस जिम नहीं थे। फिर 2012 में फिर यहाँ पे गांधीनगर में एक लग्जरियस जिम ओपन हुआ। फिर मैंने अपने सिटी से ही फिर एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेरा रेगुलर रहा है फिर इंडस्ट्री में 2012 से। ओके, दैट्स फैंटास्टिक सर। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि मेहुल सर ओन्स अ जिम, ट्रांसफॉर्मर द जिम। दिस इज लोकेटेड इन गांधीनगर। अगर आप एक लुक लोगे, दिस इज अ वेल इक्विप्ड जिम जहां पे मेहुल सर पर्सनली ट्रेन करते हैं। तो मेहुल सर, लाइक टाइटल मिलने के पहले और टाइटल मिलने के बाद लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस थे वो? पहले तो बस एज अ कोच ही काम करते थे, एज अ फ्रीलांस कोच काम करते थे।
बट जैसे ही आपको टाइटल मिलता है, मतलब बोलते हैं ना, आपका फेम बढ़ जाता है। दो चीज़ होती है, एक तो आपको लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, और दूसरा कि आपका जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, डेफिनेटली आपको बॉडी बिल्डिंग में पहले इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है अपने डाइट, न्यूट्रिशन प्लस वर्कआउट में। वो सब खर्चा बहुत होता है। कोच के लिए वो सब मेंटेन करना थोड़ा टफ होता है, बट जो पैशन होता है वो रास्ता निकाल लेते हैं। राइट। तो उसके बाद जो अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो तो उसमें भी आप ग्रो कर सकते हो, और दूसरा आपका फेम ग्रो हो रहा है, मतलब लोग आपको जानते हैं, तो वो आपको क्लाइंट्स भी बहुत इजीली मिल सकते हैं। वो थोड़ा सपोर्ट रहता है कोच के लिए। डेफिनेटली। तो मेहुल सर, आपको ऐसा कब लगा कि आपको लाइक बॉडी बिल्डिंग को प्रोफेशनली यू हैव टू ओन इट? आपको प्रोफेशनल लेवल में स्पोर्ट्स में अगर जाना है तो बॉडी बिल्डिंग में जाना है। व्हेन यू रियलाइज एक्चुअली प्रोफेशनली कोच का मैंने स्टार्ट किया था 2011 से, और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसे कि सब बोलते हैं ना, प्रोफेशनली सब वो फील्ड में आप जितना गहरा जाते हो, लोगों को जानते हो। फिर कुछ बॉडी बिल्डर से मिला, फिर कुछ वीडियोस वगैरह में हमने अच्छे प्रोफेशनल मॉडल्स को, फिटनेस मॉडल्स को देखा, तो हमें लगा कि हाँ, इसमें आगे जाके ग्रोथ है, आप थोड़ा सेट हो पाओगे। और दूसरा क्या है कि पहले से ही वो चीज़ का पैशन था। तो 2012 में 11 में जब चालू किया, और 2014 से मैंने प्रोफेशनली ये फिटनेस मॉडलिंग का, बॉडी बिल्डिंग में ये कैटेगरी होती है एक्चुअली, मेंस फिजिक की, तो वो 2014 से स्टार्ट किया था। ओके। और फिर तो जर्नी तो आगे सबको पता है, 15, 16, 17, और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपने रियली मेहुल सर, आपने एक हिस्ट्री क्रिएट किया, एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी। बहुत लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। लोग आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, और मैंने बहुतों को देखा है कि दे एस्पायर टू बिकम लाइक यू, आपके जैसा वो बनना चाहते हैं। तो सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू स्टक टू योर रूटीन। तो इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था जो आपको लगा कि नहीं, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? एक्चुअली ये इंडस्ट्री में जो भी कोच बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनली जाते हैं, उनके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट तो सबसे पहला फाइनेंशियली होता है। क्योंकि सप्लीमेंट्स प्लस न्यूट्रिशन। लेकिन दूसरी चीज़ है कि उनका क्या है कि कोच के पीटीज भी रहते हैं, जैसे कि 6 पीटी है या 8 पीटीज है, तो वो पीटीज करवाने एक्चुअली आपको रेगुलरली 1 आवर का सेशन होता है। कभी 1 आवर के 1.5 आवर भी हो जाते हैं। वो सेशंस लेने, मतलब आपका ऑलरेडी 7 to 8 आवर्स का ड्यूटी तो हो ही जाता है। उसके अलावा 2 टाइम्स वर्कआउट करना होता है। मॉर्निंग में भी आपका बिटवीन 1 to 1.5 आवर, इवनिंग में भी 1 to 1.5 आवर, प्लस उसके अलावा बाकी डेली 5 to 6 मील्स वो मैनेज करने होते हैं कि आपको थोड़ा उसमें प्रिपरेशन भी करना है, प्लस उसका इंटेक भी करना है, और उसके अलावा 8 आवर्स की स्लीप। तो ये चीज़ें बहुत सारी मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन और बहुत हार्ड वर्क। कभी घूमने जाते हो सर? कभी ऐसा होता है कि नहीं, अभी आज मौका है, मैं घूमने जाऊंगा फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करूंगा? मैंने 2014 एंड से 2017 एंड तक तो अपना बर्थडे ही नहीं मनाया था। मैंने केक ही अवॉइड कर दिया था। ओह माय गॉड। मतलब मैं अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रहता था ज़्यादातर, क्योंकि मैं टाइम पर कम दे पाता था। क्योंकि ऐसा था कि एक तो प्राइवेट जॉब होता है, तो क्या होता है कि कंपनी में जिस तरह से ज़रूरत होती है, तो ऐसा था कि स्टाफ वहाँ पे बहुत कम था, तो 8 आवर्स के 10 आवर्स हो जाते हैं, 11 आवर्स हो जाते हैं, और उसके अलावा फिर आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत अकेला रहता था, मतलब जो भी फ्रेंड्स था, मतलब वो वहीं पे, जो काम है हमारा वहीं पे, बाकी ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इवन फैमिली को भी। उसके बाद टाइम नहीं दे पाते थे। ये सर जैसे क्या होता है कि हम अगर बाहर निकलते हैं, हमें समोसे देख के, पकोड़े देख के, चाट देख के, गोलगप्पे देख के बहुत क्रेविंग होती है। सर कैसे रोकते हो अपने आप को? वो बस एक दिमाग में गोल होता है कि नहीं, हमें ये करना है, वो एक अपना ड्रीम होता है कि ये अचीव करना है, तो बस उसके लिए हो जाता है। बाकी सर मैं थोड़ा सा मिथ की, यस प्लीज एक्चुअली बाकी मैं थोड़ा सा मिथ की सर। हाँ बोलो ना सर, पहले आप बोलो। बॉडी बिल्डिंग का भी ऐसा होता है कि एक ऑफ सीजन होता है। जब आप कंपटीशन फिनिश करते हो तो एक ऑफ सीजन भी होता है, तब वो अपना जो भी थोड़ा बोलते हैं ना, बड़ा बोलो या थोड़ी इच्छाएं बोलो, वो सब खत्म कर लेते हैं, जो भी खाने की इच्छा हो। Oh my God. अब सर थोड़ा सा मिथ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आम यूथ्स में देखा है, या मैं पब्लिक से बात करता हूँ, तो सप्लीमेंट को लेके दे आर वेरी एप्रीहेंसिव। बहुत ऐसा बोलते हैं कि जैसे सप्लीमेंट जो होता है, चाहे वो क्रिएटिन हो, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट हो, वे प्रोटीन हो, या प्री वर्कआउट जो लेते हैं ये लोग, उसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं यूथ में।
तो what do you say, sir? What do you call on Actually, supplements? सबसे पहली चीज तो सप्लीमेंट्स के बारे में जो मिस है सबको सब अभी जो बहुत चल रहा है कि सबको ऐसा है कि ये लेने से हार्ट अटैक हो रहा है। एक्चुअली ऐसा हाँ, exactly. ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखोगे अभी का ऐसा है कि सबका लाइफस्टाइल वैसे हो गया है। आप देखोगे तो स्ट्रेस लेवल सबका बहुत ज्यादा है, स्लीप साइकिल बहुत कम हो गई है सब लोगों की, और फूड आप देखोगे कि जनरली ऐसा हो गया है कि ये सब ऑनलाइन फैसिलिटीज से और जो लाइफस्टाइल में बोल रहा हूँ कि जैसे कि ग्रुप में ज्यादा बाहर जाना, तो वीकली 1 to 2 टाइम सबका बाहर खाने का ज्यादा होता है कि जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल एक तो हाई जाएगा, स्लीप साइकिल खराब है तो उसकी वजह से भी आपका बीपी हाई रहेगा, और बाकी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वजह से भी, तो इन सब चीजों की वजह से एक्चुअली हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। बट क्या है कि वो सप्लीमेंट्स या मतलब ये एक तो फिटनेस इंडस्ट्री अभी काफी बूम इंडस्ट्री है कि ये काफी ग्रो हो रहा है, तो कुछ अच्छी चीजें भी है और हाँ कुछ बुरी चीजें भी है कि सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली पहले प्रोफेशनल कोच को आप हायर कीजिए, आप उनसे पूछिए, गाइडेंस उनसे लीजिए, आपके गोल के अकॉर्डिंग कौन सा सप्लीमेंट्स आपके लिए सही है, कौन सा आपको लेना चाहिए, तो वही आपको गाइड करेगा और उन्हीं से आपको लेना चाहिए, डायरेक्टली वो नहीं परचेस करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है एक्चुअली। राइट सर, Yes. राइट। लाइक इवन आप भी सर सप्लीमेंट यूज़ करते होगे, एंड मीनवाइल आपने अपनी बाकी के डाइट्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी होंगी कि जो कि एनफ प्रोटीन्स आपको दे रहे हैं, एनफ कार्ब्स दे रहे हैं और जो रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। सर व्हाट इज़ योर रूटीन एज एन मील्स की अगर रूटीन की बात करें तो आप कैसे कैसे मील्स लेते हो, किस किस वक्त लेते हो? जी एक्चुअली ऐसा होता है कि डेली मेरा जब मैं ऑन सीजन रहता हूँ तो मेरे दिन के 6 मील हो जाते हैं, और जब भी ऑफ सीजन रहता हूँ तो ऐसा होता है कि मील्स मेरे थोड़े 1-2 मील कम हो जाते हैं। बाकी ऐसा होता है कि मॉर्निंग से हमारे पीटी के रूटीन तो स्टार्ट हो जाते हैं, तो मॉर्निंग में सबसे बेस्ट हमारा होता है कि हम भी कोई लिक्विड इंटेक ले लेते हैं जिसमें अपना ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन शेक वो सब मिक्स करके उसका शेक बना देते हैं। तो क्या है कि हम ड्यूटी के साथ मतलब जो पीटी ले रहे हैं उसके साथ भी हम इंटेक कर सकें। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग 15-20 मिनट निकालेंगे। उसमें भी मेरा ऐसा ही होता है कि मैं कुछ भी प्रोटीन, कार्ब्स एंड गुड फैट का सोर्स रखता हूँ। प्रोटीन में जैसे कुछ भी मेरा बॉइल्ड एग्स है, कार्ब्स के लिए ये वाइट ओट्स होते हैं, एंड गुड फैट्स के लिए ड्राई फ्रूट्स होते हैं। फिर आता है लंच, तो लंच में भी सेम अपना चिकन 100 ग्राम, कार्ब्स के लिए ब्राउन राइस या तो स्वीट पोटैटो एंड सलाद, वेजिटेबल सलाद। सेम मेरा इवनिंग का मील हो गया, फिर डिनर भी मेरा सेम हो गया। मतलब ये जो प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट का इंटेक जो है वो सेम रखना होता है कि सारे मील्स में, जैसे कि मैंने 20-20-20 सब सेट कर दिया है, तो उसके हिसाब से मुझे काउंट करके सारे मील्स रखने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने 6 मील रखे हैं तो 6 मील में मेरा कैलोरीज प्लस मेरा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का इंटेक डिवाइड रहेगा, तो उसके हिसाब से मैं अपने मील्स सेट करता हूँ। ये तो बहुत साइंटिफिक मील लग रहा है सर मेरे को सुन के। मेरे ख्याल से मैडम को बहुत परेशानी हो जाती होगी जब आप बोलते हो कि मुझे 20 ग्राम्स ये चाहिए, 20 ग्राम्स वो चाहिए, 50 ग्राम्स वो चाहिए। थोड़ा परेशानी रहता है, वो कंप्लेन आई थिंक जनरली रहता है। आई थिंक सारे कोच के वाइफ का ही जनरल कंप्लेन होगा सर। नाउ मिस्टर गुजरात, मिस्टर इंडिया में आपने ट्रायल दिया एंड यू रिप्रेजेंटेड गुजरात इन मिस्टर एशिया एंड मिस्टर वर्ल्ड। व्हाट नेक्स्ट, क्या देख रहे हो सर आप? एक्चुअली अभी तो काफी टाइम से मेरा, जब मैंने जिम ऑन किया है तो बिजनेस में काफी टाइम से पड़े हम लोग, और बाकी ये जो कोविड का बीच में गैप था, मैंने प्रिपरेशन भी वापस कर लिया था। ये लास्ट नवंबर में एक्चुअली मेरा प्लानिंग था कंपटीशन के लिए, बट समाव ऐसा हो गया कि शोल्डर इंजरी की वजह से मैं खेल नहीं पाया, तो काफी टाइम से फिर अभी ब्रेक पे चल रहा हूँ। बट विद इन मतलब आफ्टर 6 मंथ्स मेरा वापस प्लानिंग है कि मेरे को वापस कंपटीशन स्टार्ट करना, और नेक्स्ट गोल मेरा जो आप बता रहे हो कि मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, बस वही गोल है। माय गॉड सर, मैं बड़े गर्व से बोलूंगा कि भाई अब मैं मेहुल सर से मिला हूँ, मैं बड़ा करीबी हूँ सर। उस टाइम अपॉइंटमेंट तो नहीं मांगोगे ना कि भाई अपॉइंटमेंट लेके आना? No, definitely. We'll definitely do our next session. So, ladies and gentlemen, boys and girls, this was Mehul Rathor. Mehul Rathor, bronze medalist in Mr. Gujarat. He represented Gujarat in Mr. Asia and Mr. World trial. He's a sponsored model for Health Vita supplement and a sponsored athlete for Air on Vessels.
and the owner of Transformer the gym in Gandhinagar and Ahmedabad region. So this was Mehul Rathore. बहुत ही soulful message सर ने दिया आप लोगों को कि फिटनेस रूटीन और जिमिंग एक्सरसाइज वर्कआउट को एक डेली रूटीन बनाइए. इसको डोंट मेक इट अ पैशन. लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फ्यूचर, फॉर द पीपल हु आर सराउंडेड बाय यू. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू सेलिब्रिटी. टिल देन योर ओन राहुल इज साइनिंग ऑफ. बाय बाय. गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब. तो मैं हूं आपका होस्ट फॉर दिस इवनिंग राहुल. जैसा कि आप जानते हैं कि मिथ बस्टर्स पे हर वीकेंड वी कॉल फॉर अ सेलिब्रिटी. और इस बार जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, शी इज अ बिग टाइम सेलिब्रिटी. जी हाँ, उनकी क्रेडेंशियल्स अगर पढ़ें तो क्रेडेंशियल्स इतनी लंबी हो जाएगी कि मुझे शायद सारा दिन लग जाए. जी हाँ, कुछ बुलेट पॉइंट्स में उनके बारे में बताता हूं. यू विल गेट टू नो कि हाउ बिग शी इज. शी इज स्नेहा भारतीय. Sneha Bharatiya is Mrs. India finalist 2017. She is Mrs. Ahmedabad 2018. She is a fitness model. She is a trained nurse. She is a teacher. And above all, she is a mother. तो आइए वेलकम करते हैं स्नेहा का अपने शो में. हाय स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका. सो मैडम आप, एंड सबसे पहले यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. ओके, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को टाइम देने के लिए. So, madam, it's like Mrs. India finalist. It's something very big. बहुत बड़ा achievement है ये. तो my question to you is कि जब आपको ये टाइटल मिला, ये टाइटल comes in with great responsibility. You know, आप एक आइकॉन हो, एक यूथ आइकॉन हो. People are watching you, आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं. तो that comes in with very big responsibilities. तो कैसा लग रहा है? इज दैट अ बर्डन फॉर यू और यू फाइंड योरसेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड? आपको ऐसा लग रहा है? मैं इस टाइटल के साथ मेरी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ. सबसे पहले तो मुझे कोई जानता नहीं था, सब मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जानते थे. अभी ऐसा है कि मेरी खुद की पहचान है और इसके बाद मैंने काफी कुछ किया है. पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, अब मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ कोई भी फील्ड मुझे दे दो, मैं टॉप पे रहूँ. ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स. मतलब पूरे इंडिया में सेलेक्ट होना एंड यू नो रीचिंग अप टू टॉप 5 फाइनलिस्ट इज समथिंग वेरी बिग. तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन. 2017 आपका एक लकी ईयर था. एंड ऑफ कोर्स मिसेस अहमदाबाद आप सेलेक्ट हुए थे एंड यू वर रिप्रेजेंटिंग गुजरात. यू नो 2018 में आप मिसेस अहमदाबाद सेलेक्ट हुए थे. हाउ वाज दैट फीलिंग जब आप वो स्टेज पे, आप कॉन्टेस्ट पे चढ़ रहे थे? यू नो आप यू वर वॉकिंग ऑन द स्टेज, उस टाइम की फीलिंग क्या थी? पहले मैंने मिसेस इंडिया किया था तो ये मेरे लिए काफी इजी था, पर फिर भी आप एक स्टेज पे जाते हो तो थोड़ी घबराहट सी तो होती है. पर मेरे बैक सपोर्ट में मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया था और वो जर्नी भी मेरे लिए काफी अच्छा था. क्वेश्चन आंसर राउंड, सारे राउंड्स बहुत अच्छे थे. मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं बहुत आगे तक जा चुकी हूँ. ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स. मतलब वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन एज वेल. तो मैं पर्सनली, मुझे पता है कि गौरव सर, यानी कि जो हस्बैंड है, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, मिस्टर गौरव भारतीय, ही इज द हस्बैंड ऑफ स्नेहा. तो जितना सपोर्ट गौरव का रहा है पर्सनली, जितना मैं जानता हूं, इस लेवल तक पहुंचने के लिए गौरव का बहुत बड़ा हाथ रहा है. तो व्हाट डू यू से मैम? सपोर्ट मतलब पर्सनली, प्रोफेशनली मेरे लिए इम्पॉसिबल था. इवन फैमिली सपोर्ट इतना नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट. कहीं पे भी मुझे ऐसे लगे कि कहीं पे मैं वीक हो जाती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे पूरा, इवन फैमिली में जो भी घर के काम होते हैं पूरे सब में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. ऐसा नहीं था कि हाँ चल तेरा ये वर्क है तो आधा मैं बांट लेता हूँ, तू ये कर. और उन्होंने मेरे लिए एक प्री स्कूल भी खोल रखा है. मैं एज ए टीचर हूँ तो उन्होंने मेरे एक स्कूल भी खोल के रखा है, उस स्कूल की मैं ओनर हूँ. ट्यूशन क्लास भी उन्होंने ही मुझे सब करके दिया है, वो भी मैं रन कर रही हूँ. अभी मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 8. मैं ऐसे बोलूंगी हर एक लड़की को मेरे call for a big round of applause. Call for a big round of applause. Seriously, hats off to गौरव. आप, उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया है. सो मुझे याद है स्नेहा, वी एक्चुअली मेट इन अ शो, लाइक, ठीक है, मुझे पता था, मुझे प्रोड्यूसर्स ने, प्रोडक्शन हाउस ने मुझे एक ब्रोशर दे रखा था कि ये गेस्ट लिस्ट है. जब मैंने आपका नाम पढ़ा कि ओ माय गॉड, शी इज लाइक मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट, मुझे लगा कि मतलब बहुत एटीट्यूड थ्रो करेंगी ये. तो जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला, यू आर सो हम्बल, यू आर सो स्माइलिंग और बहुत डाउन टू अर्थ. मैं आपको बता दूं कि स्नेहा जो है,
जब आप उनसे मिलोगे बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो उन्होंने इतनी बड़ी टाइटल अचीव करी है। शी इज़ वेरी हम्बल। तो ये इस टाइटल स्नेहा लाइक क्या होता है कि टाइटल मिलने के बाद की लाइफ बहुत बदल जाती है, राइट? तो ऐसा क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या नजर आया टाइटल मिलने के पहले और टाइटल मिलने के बाद? मुझे बहुत इंटरेस्ट है, पहले से ही शौक था, पर उस टाइम पे सब बहुत लाइटली लेते थे। ये जो टाइटल मिल जाता है उसके बाद बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, बहुत सारे शो वाले हैं कि बोलते हैं कि आप हमारे शो में आइए, आप एज ए जज आइए। पर मैं एक वर्किंग वुमन भी हूँ, मेरी स्कूल चलती है, तो इसकी वजह से मैं इस फिल्म में इतना वर्क मेरा नहीं दे पाती हूँ, 100% नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारी ऐसी मूवी है कि मुझे पैसे मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, पर मैं उनको डेट नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, पर एक पहचान बन जाती है। आप आइकॉन तो हो ही, यूर अ ब्यूटी आइकॉन। आप एक अगर ब्यूटी पेजेंट को लें तो यूर अ ब्यूटी आइकॉन, एज वेल एज आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो। यू डूइंग लॉट मेनी वर्क, बहुत सारा काम आप एक साथ कर रहे हो। यूर अ टीचर, यूर अ नर्स, यूर डूइंग मूवीज, आप वेब सीरीजेस कर रहे हो, और साथ में बीइंग अ मदर, एक माँ होना इज अ फुल टाइम जॉब। इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? सबके पास सेम टाइम रहता है, 24 आवर सबके पास रहते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि टाइम को वेस्ट ना किया जाए, और जितना भी टाइम मिलता है आप उसको मैनेज करो, ताकि कहीं पे भी आपका कुछ भी ना छूटे। आप मेरा फैशन इंडस्ट्री में मेरा जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरा शौक है, पर मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचर का है। मैं उसको भी स्किप नहीं कर रही हूँ, ना मैं उसको भी स्किप कर रही हूँ, मैं मैनेज करके मैं चल रही हूँ। तो मैं जो भी है, लड़की है या जो भी है, सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपका जो टाइम है उसको मैनेज करके आप चलिए, और आपके शौक भी पूरे होंगे, और आपका जो भी आपके मम्मी पापा या आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली जो आपसे एक्सपेक्टेशन रख रही है वो भी एक्चुअली मेरा इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो स्नेहा आप अब एक्चुअली मेरा क्या है कि मॉर्निंग मेरा स्कूल चलता है 12:30 तक। आफ्टर दैट मेरी ट्यूशन क्लासेस है। ट्यूशन क्लासेस के बाद उसके जो पर्सनल ट्यूशन होते हैं, जैसे कि बच्चों को पर्सनली एक बच्चे को लेके पढ़ाना, उसमें 1 आवर का टाइम देना होता है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, पर ऐसा कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे टाइम की वजह से थोड़ी बहुत छोड़नी भी पड़ती है, पर जितना हो सके उतना मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे से हो। दूसरा कि मेरा एक रूल है कि दिन में एक काम ऐसा करो अच्छा, जो ना ही आपको कोई फायदा दे, बट आपकी खुद की हैप्पीनेस के लिए। जैसे कि आज मैं एक शॉप पे गई थी, मैं मेडिसिन ले रहे थे, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मेडिसिन लेनी थी। एक अंकल वहां आए, वो पूछ रहे थे कि वो जो शॉपकीपर था उसको पूछ रहे थे कि भैया कोई बीपी लेने घर पे आ सकता है क्या? अब मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी ट्रेन नर्स हूँ। मैंने अंकल को बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं जा सकती। तो मैंने नंबर दिया, मैंने बोला अंकल आप इसको आप फोन करके आप बुला लेना, वो घर पे आके आपका बीपी नाप लेंगे। तो इतना बेटा थैंक यू। हाँ, मैंने बिना पूछे मैंने उनको बता दिया, नंबर भी दे दिया, मेरा भी नंबर दे दिया कि सपोज वो नहीं आ सकते तो आप मुझे कॉल करना। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिन में एक काम ऐसा करो जो यहाँ आपके हार्ट को छू जाए, ऐसा काम करो, बस उसका एक भगवान उसका साक्षी हो। आपकी सोच, आपकी आपकी ज़हनियत इतनी अच्छी है, इसीलिए आप यहाँ पे हो। एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने सोचा था कि ये मेरा एक सोच है कि एवरीडे कुछ अच्छा करना। एक बार मैं लिफ्ट में जा रही थी, मुझे बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बहुत बुजुर्ग थे। मुझे लगा कि यार ये लिफ्ट में ऐसे ऊपर तक ले जा रहे हैं, इतने बुजुर्ग है। मुझे लगा कि यार ये रोटी के लिए ही करते होंगे ना, बहुत बुजुर्ग थे, आई थिंक 75 प्लस होंगे। मैंने पूछ लिया कि अंकल क्या आपको प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है? उन्होंने मुझे इतना डांट दिया कि कई बार ऐसा भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो सामने से वो चीज हम पे ही भारी पड़ जाती है, पर फिर भी मैं छोड़ा नहीं। ऑब्वियसली आपकी ये चीज मैंने पूछा अच्छे के लिए होगा, शायद उन्हें चूक गया होगा। पूछा था, पर ये सारी बातें मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की है, पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये चीज। तो मेरे ख्याल से स्नेहा, मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग आपको देखते हैं, दे वांट टू बी लाइक यू। आपके पास जैसा आपने बताया कि लोग आते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी आपके पास आती होंगी कि मैम मैं इस कंपटीशन में जा रही हूँ, अब मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आपने बहुत लोगों को ट्रेन भी किया होगा, बट बीइंग एन आइकॉन, लोगों के लिए आइकॉन हैं आप, उसके लिए
पीपल वांट टू नो एक छोटा सा मैसेज जो कि आप इस जनरेशन को देना चाहते हो। इस जनरेशन को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँ, स्पेशली गर्ल्स को देना चाहती हूँ कि अपने दम पे आगे बढ़ो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अभी आपने बहुत सारा सुना होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत, ये मैसेज सारी वुमेन के लिए है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप 3 में से 1 लड़की का आपको सुनाई देगा। और ये क्यों होता है कि हस्बैंड ये नहीं दिलाता है, हस्बैंड वो नहीं दिलाता है, क्यों चाहिए? खुद कमाओ, खुद ले लो, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहना है? तो बस ये एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि अपने दम पे जो करना है करो। इवन ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर निकल के ही कुछ कर सकते हो। मैं घर पे हूँ, मैं सपोज कुछ भी नहीं करती हूँ तो मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं मेरे खुद के कपड़े बनाती हूँ, मैं मेरी बेटी के कपड़े बनाती हूँ। कुछ बहुत सारे काम ऐसे जो आप घर पे रह के भी कर सकते हो। तो खुद इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर कभी डिपेंड मत रहो। बहुत बड़ी बात कही स्नेहा आपने कि आप इंडिपेंडेंट बनो, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी करो, अपने सपने खुद पूरे करो। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये कोई स्किल सीखना, बहुत ईजी हो गया है। इज वेरी सिंपल। अगर आप चाहो, और बहुत पहले से कहा गया है, जहाँ चाह वहीं राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, वो राह निकल आता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज स्नेहा भारतीय, यूथ आइकॉन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शी इज़ रियली प्योर एट हार्ट। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा स्नेहा आपसे, एंड आई विश कि वील स्टे इन टच, हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे। एंड इट वाज वेरी गुड टू मीट यू। तो दिस वाज स्नेहा भारतीय, मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट 2017, मिसेस अहमदाबाद 2018, एक फिटनेस मॉडल हैं, एक एक्टर हैं, एक मदर हैं, एंड विद ऑल शी इज अ ट्रेन्ड नर्स, शी इज अ टीचर, और डूइंग एवरीथिंग एक साथ। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और एक बहुत ही सोलफुल मैसेज स्नेहा ने दिया है कि आप इंडिपेंडेंट बनो, प्योर एट हार्ट रहो। स्नेहा, एक फाइनल ये कि आपको कैसा लगा हमारे प्लेटफॉर्म पे? बहुत, मतलब आप काफी टाइम से मेरे टच में हो। आई थिंक 1 वीक से आप कितना छोटी छोटी चीजें मुझे पूछ रहे हो, आपका ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ आप एकदम परफेक्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। तो मैं हूं आपका फेवरेट होस्ट फॉर दिस इवनिंग, राहुल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिथ बस्टर की वीकेंड ऐसी होती है जो बहुत धमाकेदार होती है। धमाकेदार इन अ सेंस कि हम बुलाते हैं एक सेलिब्रिटीज, अपने फील्ड के एक्सपर्ट। तो इस बार हमारे साथ जुड़ रही हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है, इस साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं दिशा। Let me give you a brief introduction about Disha. Disha is a dancer, a choreographer, a trainer, और साथ में एक बैंकर भी है। और इनकी स्माइल और त्वचा से कंफ्यूज ना हो, शी इज अ मदर एज वेल। तो सबसे पहले दिशा, इतना कुछ मैनेज करती हैं आप, हाउ इज दैट पॉसिबल? डूड, हमसे तो एक ही चीज नहीं हो पाता है, आप इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती हैं? First of all, thank you for having me on this show. एंड आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि कैसे मैनेज होता है। यू आर ऑल्सो बैंकर, सो यस, इट्स टफ टू मैनेज एवरीथिंग, स्पेशली व्हेन यू हैव अ किड, यू हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंड। तो बट इट्स अ पैशन, इट्स अ थिंग। जैसे बच्चों को कैसे पढ़ने के बाद वो खेलने का टाइम मिलता है, उसी तरह से अगर आप अपने पैशन को परस्यू करें तो यू कैन टेक आउट टाइम फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली दिशा। और सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ कि मी एंड दिशा आर नोन टू ईच अदर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने देखा है दिशा को कैसे स्टेज पे रॉक करते हुए, स्टेज हिला देती हैं ये व्हेन शी डांस। एंड सबसे बड़ी बात है कि शी हैज हर ओन मूव्स। आप दिशा, आप कोरियोग्राफी भी खुद करती हैं अपने डांस की? राहुल, as you know, that I have not taken any training sort of thing in dance, and not professionally trained. So it has been my passion since I don't remember the time, but it has been a part of me. Dance has been a part of me, and I cannot imagine my life without dance. So actually हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब जहाँ से मैं और आप बिलोंग करते हैं,
प्रायोरिटी हमारे यहाँ होती है कि पहले पढ़ाई करो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली वैसा ही रहा है हमारे साथ कि पहले पढ़ाई करो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। तो ठीक है, आ गए बैंक में, बन गए बैंकर, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो इट हैज बीन विद मी, डांसिंग हैज बीन ऑल अलोंग विद मी। So it has been a very nice journey, I would say, और I am still in the process of learning. जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है, I try to learn new forms through various platforms, say it online, say it offline. I try to do that. इतने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मैंने देखे हैं दिशा, वो हमेशा बड़े हम्बल होते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं भाई आप कितने लोगों के ऊपर। Seriously, I am not a celebrity. I am just a normal girl, normal housewife and a mother, and I am trying to take time for myself. क्योंकि जब आप especially before having a baby, पहले क्या होता था कि I just have to take out some time for myself and I need to dance. I would dance. वो वहाँ पे कहानी खत्म। बट आफ्टर यू आर अ मदर, आपको बच्चे का भी ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, आपको ऑफिस भी अटेंड करना है, उसके बाद ये टाइम निकालना है। सो हाँ, मैं मेरे बेटे के साथ डांस करती हूँ, सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑलटुगेदर। फैंटास्टिक। दैट बेबी इज सो लकी दिशा कि यू नो he get a chance to dance with you. मुझे पर्सनली कभी चांस नहीं मिला आपके साथ डांस करने का, बिकॉज आई एम अ वेरी बैड डांसर। लेकिन मुझे याद है कि ऐसा एक सीन आया था जब मैं स्टेज पे होस्टिंग कर रहा था एंड आई इनवाइटेड, और वो जो मंजर था ना, जो आपने स्टेज हिलाया था, माय गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर। तो दिशा, ऑडियंस के बारे में बात करते हैं कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मतलब ये कैसे शुरू हुआ, ये कब पता चला दैट एक डांसर आपके अंदर एक छुपी हुई है? ये मुझे भी नहीं याद है ये कब पता चला। आई वॉज दैट किड जो होते हैं ना, जो पार्टियों में जाता है, मम्मा बोलते हैं कि भाई डांस कर लो। सो आई वॉज अमंग दोज किड्स, सो आई वॉज द एंटरटेनर इन ऑल द छोटे मोटे इवेंट्स विच वी हैड इन द सोसाइटी, इन आवर अपार्टमेंट्स। सो आई वॉज लाइक मैरिज फंक्शन है या कुछ भी है तो दिशा डांस करेगी। सो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे 10 गानों पे तो डांस करना ही करना है। ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग फ्री, यू कैन से। जब आई गेन कॉन्शियस, आई स्टार्टेड फीलिंग फ्री। व्हेन आई डांस आई फील फ्री। दैट्स द होल लॉजिक। यही पॉइंट होता है, जब क्या होता है इंसान अपना पैशन फॉलो करता है तो वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं कभी कभी क्या होता है कि मुझे गाने का बड़ा शौक है, मैं हूँ तो वैसे बाथरूम सिंगर, लेकिन मैं अकेले में ही गा लेता हूँ तो बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। हाँ, मैं फ्री हो गया भैया, सारा टेंशन निकल गया। ऐसा होता है। सो दिशा, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया, और उस वक्त की क्या फीलिंग थी? जैसे आप नर्वस थे या यू नो आप खुश थे कि मुझे डांस करने का? पहले तो जैसे स्कूल्स में डांस किया करते थे, वो तो एक अलग ही चीज थी। बट आई रिमेम्बर बीइंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस वाज द टाइम व्हेन यू when you were the actor. Yeah, when you were the actor. That was the first time I was in front of that big audience, and that was after I was in band. So technically I did my studies first and then I pursued my passion. So yeah, that very I was very nervous. I was very nervous, and you know that I was very nervous. मुझे याद है कि मैं बैक स्टेज आपसे मिला था और यू ऑलवेज की अरे राहुल यार क्या होगा, यार क्या होगा, इतनी बड़ी ऑडियंस है, क्या होगा। आई टोल्ड यू सब ठीक होगा यार, तू बहुत अच्छी डांसर है, तू रॉक करेगी। और ऑडियंस को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि दिशा इज अ वेरी बबली किड। वो आज भी एक बच्ची है, अगर इफ यू टॉक टू हर, शी इज वेरी बबली, शी इज वेरी ह्यूमरस, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो इतना तगड़ा है बंदी का, मतलब शी इज अ कंप्लीट पैकेज। मतलब शी, द वे शी कैरी हरसेल्फ, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज अ डांसर, शी इज अ बैंकर, शी इज अ मदर, शी हैव गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल। तो दिशा, मैंने सुना है कि आप अब लोगों को ट्रेन भी करने लगे हो एज अ डांस कोरियोग्राफर। सो व्हाट इट टेक्स टू बी अ कोरियोग्राफर, लाइक डांसर और कोरियोग्राफर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो आपको पता है कि ये आपके स्टेप्स है, ये आपको करने हैं, बट व्हेन यू आर ट्रेनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल,
I have mostly trained a group of people for certain events, and उस समय ये होता है ना कि आपको उनका coordination देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि how well you can perform, कि मैं ये स्टेप बता देती हूँ, ये तो भाई मैं दिखा देती हूँ, मैं तोड़ दूंगी, मैं फोड़ दूंगी, वो कितने केपेबल है, सामने वाला कितना केपेबल है उस चीज को ग्रास्प करने के लिए, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो किसी के कुछ इनपुट्स आते हैं, किसी के कुछ इनपुट्स आते हैं, वो क्लैशेस भी होते हैं व्हेन यू आर विद अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टीचर को इनपुट्स दे रहा है कि मैडम नहीं ये गलत कर रहे हो यार, आप ऐसा नहीं होना चाहिए, सही होता है क्या? And I am always very welcome of the thoughts. If it is a good thought, if it looks good on them, then I'll go for it. I won't quarrel against it. कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं, मैं जो बोलूँगी। अरे we are always in a learning process. I told you ना, I am still in the learning process. Right. वही बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी बात करेंगे। So Disha, dance मतलब is a form of art. I guess dance is a very difficult form of art. आप जो मूवमेंट करते हो, सिंकिंग होनी चाहिए, बॉडी के साथ आपके लेग सिंक होने चाहिए, रिदम के साथ आपकी बॉडी सिंक होनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स या कभी कभी ऐसे लोग भी आते होंगे जिनको आपको ट्रेन करना पड़ता होगा, जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत स्टिफ है, हार्ड है, तो उनके साथ काम करना कितना मुश्किल होता है? What I feel, मतलब देखो ऐसा ठीक है, ऑब्वियसली सब सारे जैसा कहते हैं, सारे जैसे बच्चे पढ़ने में भी एक जैसे नहीं होते हैं, हमारे जैसे तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा फील होता है। मैंने ऑब्वियसली एक ग्रुप को जब ट्रेन किया था तो उसमें ऐसे लोग थे जो मूवमेंट उनका नहीं था या कुछ भी नहीं था, स्टिल आई थिंक वो पैशनेट थे, दे वांटेड टू लर्न, एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो जिस हद तक भी वो सीख सकते हैं, आई ट्राई टू टीच देम। मैं पर्टिकुलरली मैं बहुत बुरा डांसर हूँ, मैं बहुत बड़ी जब आप कभी मेरे को किसी, आपको पता होगा बेटा कि मैं कितना बुरा डांसर हूँ, मेरे से वो जो होता है ना बाराती डांस, वो तक नहीं हो पाता है, मैं उसमें भी शर्मा जाता हूँ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि तू डांस नहीं कर पाता, लेकिन जब वो मूवी आई थी, यू रिमेम्बर ABCD, एनीबडी कैन डांस, मैं बड़ा मोटिवेट हो गया था, अरे भाई एनीबडी कैन डांस तो मैं तो कर ही लूंगा, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो पाया। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दे आर वेरी इन्फ्लुएंस और उनको लगता है कि मैं एक डांसर हूं, बट आउट ऑफ हेजिटेशन दे कैन नॉट स्टार्ट, ऐसा भी होता है। तो उनको क्या करना चाहिए? हाउ शुड दे मैनेज? Rahul, actually, I have been through the same phase. I was too fat. I was very bulky and I was very hesitant. हाँ, लगता नहीं है, बहुत मेंटेन कर रखा है। और मैंने कभी तुझे इतना मोटा नहीं देखा है। मोटकी always. You got me there. So, Okay. I was also very hesitant at a certain point of my life. But then, अगर आपको लगता है कि it makes you feel good, then you should go for it. I told you it's all in our mind. So if you feel like that it will make you happy, then why not go for it? I always tell and ये सोसाइटी वगैरह में हमें छोटे बच्चे मिलते हैं who are very passionate. I ask their parents to let them go. Let them enjoy. कुछ पेरेंट्स होते हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं अभी ये एग्जाम है, अभी वो एग्जाम है, एग्जाम तो होते रहेंगे, हमारी खत्म हुई क्या? नहीं, हमारी तो आज भी चल रही है, एग्जाम तो चलते रहेंगे। तो let them go, let them move. अगर सबसे बड़ी बात है, अगर फैमिली का सपोर्ट रहेगा, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। तो आई थिंक एक तो आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, तो मेक मी हैप्पी। इवन मेरे को डर लगता है, तो आप जब तक जाओगे नहीं, जब तक फील नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली वो एक जो आपके दिमाग में एक बैठा हुआ है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, वो आपको खुद ही उसको मैनेज करना है। कोई आके कितना भी बोल दे, आप उस पर इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर पाओगे जब तक आपके दिमाग में वो चीज है, राइट? मतलब इन शॉर्ट अगर आपको लगता है कि यू नो यू वेरी गुड इन डांसिंग, या आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए,
So just freak out, go out, listen to your heart, do not listen to anybody. And That's the wrong line. Right. Instagram के ज़माने पे सारे ही dancers हैं. सारे Instagram पे डांस ले रहे बैकग्राउंड मिल गई है, लिपसिंग मिल गई है, सारे ही डांसर बन गए. लेकिन मुझसे तो वैसे भी डांस नहीं हो पाता. Good with mic. You keep on doing that only. At least, You spare the thank audience. God. So एक चीज और दिशा कि you manage obviously दो प्रोफेशंस को हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट. आप एक जगह आप पैशन हैंडल कर रहे हो, एक जगह अपना प्रोफेशन हैंडल कर रहे हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 के प्रोफेशन में स्टक हैं. ठीक है, दे वांट टू मूव आउट, दे वांट अ फ्रीडम इन देयर लाइफ में फ्रीडम चाहिए और अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं. ठीक है, बट फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है. तो फॉर दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो जॉब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड जिसके कारण वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. तो आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है. तो व्हाट इज योर सजेशन टू द पब्लिक, दोज पब्लिक हु आर स्टक इन देयर जॉब? I don't know, like while I was in bank, I thought कि मैं कभी डांस नहीं करूँगी. So when I got transferred to a new location, which is Patna, I got the opportunity there. Okay, there were certain cultural committees were there who were very encouraging. So आप जहाँ पे भी हो, अगर आपको वहीं पे opportunity मिलती है, go and grab it. Okay, you know it very well, Rahul. You are doing such good, this RJ and everything, and Thank being you. in 9 to 5 job. 9 to 5, I would say, not 9 to 5. 9 to 5 तो नहीं, कहने को 9 to 5 है. 9 से शुरुआत होती है, खत्म कहाँ होता है ये नहीं पता. Pain is wrong with us. So obviously, अगर आपको मिलता है कि हाँ, you have the opportunity to go on stage and dance or be the spokesperson, so you have to go ahead. Otherwise, you have to take out time. It's like मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, दिन भर स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी वो टाइम रहता है ना जब वो बाहर खेलने जाते हैं, तो you need to take out that time for yourself, which is yours. That time is yours. If you feel कि हाँ मुझे इसको करके खुशी मिलती है, then why not? We go out for weekends, we go out to meet friends. वैसे ही अपने लिए आप टाइम निकालो to meet yourself, to meet your inner self. और वो आपको कैसे पता चलेगा when you don't have a passion? I think important thing is that you are like very much devoted to that passion. The devotion is important. बिल्कुल, devotion is very much needed. Devotion is very much needed. दिशा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढ नहीं पाते हैं, what they are made of for. जैसे कि आपने वो चीज एक्सप्लोर कर ली कि यू आर वेरी गुड इन डांसिंग एंड यू आर मेड फॉर डांसिंग. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन, हाउ टू एक्सप्लोर देमसेल्फ? बीइंग विद सर्टेन फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे, मैम आपका ये सही है, आप डांस करते हो, सही है. तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि ऐसा नहीं है, सबके पास कुछ पैशन होता है. एंड ट्रस्ट मी राहुल, डांस वाज नॉट single passion. I had many other passions. I had multiple passions. So one of them is cooking. कि सबके पास कुछ ना कुछ पैशन होता है. It's important कि आप एक्सप्लोर करो. अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा आपका पैशन. मे बी आपका पैशन बहुत ही छोटा सा हो सकता है. मे बी आपका पैशन है कि आप कुछ पढ़ो, बुक्स पढ़ो, या कुछ भी हो सकता है यार पैशन. तो इसलिए यू नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स. need to know different things. You need to actually during the COVID time बहुत लोगों को अपना पैशन पता चल चुका है. So I believe it was a very important phase, Right. very tough phase, but then very important phase. क्योंकि at that point of time people realize that what is their passion actually. So introspection is the key. आप देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आपको पता चल जाएगा आपकी पैशन. What you are made for. Thanks a lot, Disha. Thanks a lot for coming to this platform. Thanks a lot for coming to Mythbuster live. And really ये conversation बहुत ही enjoy किया मैंने. Trust me people, trust me guys, Disha is known for her dancing. जिस organization के साथ दिशा जुड़ी हुई हैं, उस पूरे organization में people really cheer about her.
एंड दिशा, आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए. Thank you. So this was Thank you for having me. ये थैंक यू मैं सुनना चाहता हूँ दिशा. I know, I'll call you back. It was Disha Priyadarshini, dancer, choreographer, a banker, a mother, at the same time बहुत ही enthusiastic personality, बहुत कुछ सीखने का है इनसे. अगर if you want to directly interact with her, डिस्क्रिप्शन में हमने इनका इंस्टाग्राम आईडी डाल रखा है, फेसबुक आईडी डाल रखी है, इनके यूट्यूब चैनल की आईडी डाल रखी है. अगर इफ यू वांट टू कांटेक्ट दिशा, यू कैन डायरेक्टली डीएम टू हर. शी विल रिप्लाई टू एवरी ऑफ योर क्वेरीज. एंड टिल देन, योर ओन आरजे साइनिंग ऑफ. बाय बाय. इवनिंग, नमस्कार, आदाब. तो मैं हूं आपका होस्ट फॉर द इवनिंग राहुल, और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मिथबस्टर के इस चैट सेगमेंट में, जहां पे हम बुलाते हैं हमारे सेलिब्रिटीज को और हम उनसे करते हैं कुछ बातें. तो इस बार के जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, ही इज अ बिग टाइम म्यूजिशियन, राइट? ही इज नॉट ओनली म्यूजिशियन, ही इज अ कंपोजर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट, बेसिस्ट. जी हाँ, अ वन मैन आर्मी. तो The guest for this evening is समीर वाडिया. So, इससे पहले कि हम समीर के बारे में कुछ जाने, मैं आपको पहले भी बता देना चाहता हूं कि समीर is a very good musician. फिलहाल के लिए he is associated with Audio Evo Studios and he owns a pop lit society. हम बात में जाने के पहले सुनते हैं समीर से. तो hi समीर, how are you? Hey, hi Rahul. I'm doing really good. How are you doing, man? I'm fantastic. I'm fantastic, Samir. So, how it all started, Samir? Like, music is not my cup of tea. तो सुर ताल से थोड़ा सा मेरी हाथ तंग है उसमें. But since you are a very good composer, so मैं जानना चाहता हूँ कि how it all started. So basically हुआ था ये कि साल था 2010 का और हम हो चुके थे फेल 12th में. हम ऐसे क्या बोलते हैं, जोश में साइंस तो ले लिए, पर काफी और भी साइंस स्टूडेंट्स की तरह हम खत्म नहीं कर पाए. और डांट तो बड़ी थी घर से, लेकिन रिपीट भी करना था क्योंकि बोल दिया था पापा ने कि भाई खत्म तो करना पड़ेगा एजुकेशन. तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम करेंगे बिल्कुल. और हमारे केमिस्ट्री क्लास के एग्जैक्ट नीचे था गिटार क्लास. तो देखा वो, और स्कूल तो होती नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना पापा को अप्रोच किया ही जाए कि एक आध हॉबी भी रख लेने दो, अभी पूरा साल स्कूल तो नहीं जाना है, तो सिर्फ पढ़ाई से तो बोर हो जाएंगे. तो कई मिन्नतों के बाद पापा ने बोला ठीक है बेटा कर लो. और दूसरा रीजन ये भी था कि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हुआ करता था. लड़कियां थोड़ी मुझसे लड़कों से बात तक नहीं होती थी, टू बी रियली ऑनेस्ट. अरे टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइक इट वाज सच अ डिजास्टर दोस डेज कि मैं कभी भी ऐसा सोचता था कि मैं कभी कोई दोस्त बना भी पाऊंगा या नहीं, ये थिंकिंग में आ गया था. और एक चीज मैंने नोटिस की है, चाहे हमारी फिल्मों में हो या फिर रियल लाइफ में हो या कहीं पर भी, कि जहां जहां गिटारिस्ट होता है ना, जो बंदों के पास गिटार होता है ना, वहां लड़की जरूर होती है साथ में. ये मैंने भी नोटिस किया है. या तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए कि शायद गिटार के बहाने एक आध बंदी से बात ही कर ली जाए. तो गए हम ऐसे जोश में गिटार सीखने, बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ऐसा हो गया कि बहुत मजा आने लगा. आई मीन द म्यूजिक इटसेल्फ बिकेम समथिंग आई फेल इन लव विद. सो ढूंढने तो मैं शायद बंदी निकला था, लेकिन क्या बोलते हैं, हमसफर मिल गया. हाँ, कहीं ना कहीं एक हमसफर मिल गया काइंड ऑफ लाइफ के लिए पूरा. एंड आई कुड नॉट बी मोर थैंकफुल फॉर दिस ग्रेट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई गॉट समहाउ. सो ढूंढने निकले थे बंदी, बट बंदी मिली या नहीं मिली? बंदी गिटार से तो बहुत ही कम ही मिली है जीवन में, बट ये मिथ ही है कि गिटारिस्ट, अगर तुम्हारे पास गिटार है तो बंदी हो सकती है. यूजुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि सच हो, पर हाँ कह सकते हो कि कभी कभार तो ऐसा हुआ है लाइफ में कि हाँ गिटार सुन के इम्प्रेस तो हुई है कभी ना. बेसिकली उसके बाद ये हुआ कि भाई गिटार सीखना शुरू किया, एंड देन धीमे धीमे गिटार से मेरा फोकस म्यूजिक पे शिफ्ट होने लगा, क्योंकि सिर्फ गिटार बजाने से आई वाज जस्ट बीइंग एन अकम्पनिस्ट एंड ऑल दैट. बट स्लोली एज आई स्टार्टेड कंपोजिंग, मुझे समझ में आने लगा कि किस तरह से मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स को डिफरेंट काइंड ऑफ राइम स्कीम्स में यूज करके
कुछ ना कुछ ट्यून डालकर मैं गाना बना सकता हूँ। तो धीमे धीमे सीखा वो और फिर कोशिश करते गया एंड फिर अलग अलग बैंड्स में परफॉर्म किया, अलग अलग बैंड्स में अलग अलग रोल्स में परफॉर्म किए। लेटर ऑन आई ऑल्सो तो इन 2011 बेसिकली आई स्टार्टेड लर्निंग बेस एज वेल, बेस गिटार, और उसके बाद बेस गिटार भी सीखना चालू कर दिया। तो कई बैंड्स में आई हैव most of the bands, to be really honest, I have been a bassist. Even if I'll start my own band, I would like to be a bassist because yes, that's an instrument I love really so much. तो वहां से शुरुआत हुई जर्नी की और फिर आगे बढ़ते गए। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में काफी सारे फेस्ट में परफॉर्म किया, काफी सारे बैंड्स के साथ भी कोलैबोरेट किया, काफी सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया और फिर जिंदगी चलती गई, म्यूजिक चलता गया, फ्रीलांस शोज चलते गए और अब ऐसा टाइम आया कि आई एम रिलीजिंग माई ओन सॉन्ग्स। तो लगभग 10-12 साल का जर्नी रहा है। दैट इज हाउ आई हैव स्टार्टेड एंड हाउ इट इज गोइंग सो फार। फैंटास्टिक। तो बेसिकली ढूंढने निकले थे, बंदी मिल गया गिटार। सो दैट्स गुड ना, आपने अपने अंदर के एक्स फैक्टर को ढूंढा, तराशा एंड इट केम आउट वेरी वेल। सो आज आप उस मकाम पे पहुंचे हुए हो कि आप अपने एक्स फैक्टर को नेशनल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो, आप अपने एक्स फैक्टर को लोगों के सामने रख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समीर, अ बिग कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने सुना है कि a few days back you have released your own composition, right? Yes, that's completely true. It's called कैसे चाहूं and ये गाना मैंने लगभग 10 साल पहले लिखा था। Oh my God, 10 years back. 10 years. And हुआ ऐसा कि उस वक्त तो जब लिखा था तो I had just come out of a long distance relationship. But slowly जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, मैं समझता गया रिश्तों को, जिंदगी थोड़ा मुझे समझाती गई, मैं म्यूजिक को समझता गया। वैसे ही I came to realize that distance cannot just be physical. कभी-कभी डिस्टेंस तब भी हो सकता है कि जब आप किसी के साथ एक रूम में हो या फिर एक साथ हो, और वो इनफैक्ट ज्यादा पेनफुल होता है। तो अभी इफ यू आस्क मी दैट ये सॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करता है, सो इट रिप्रेजेंट्स द आफ्टरमैथ ऑफ अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप। इंटेंशनली नहीं बोलूंगा कि वो हुआ है डिसफंक्शनल या फिर किसी एक की वजह से नहीं हुआ है, इट्स जस्ट कि दोनों लोगों की वजह से, कुछ ना कुछ चीजों की वजह से वो दोनों एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और वो टाइम पे आई थिंक द राइट डिसीजन। समीर, when you started writing this, you were into a relationship या ब्रेकअप के बाद आपने इस सॉन्ग को कंपोज करना शुरू किया? I started composing the song in August 2012. तो उस वक्त अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि वो ब्रेकअप वाला फेज चल रहा था या फिर ब्रेकअप हो चुका था। तो इट्स लाइक ये सीन था। But I basically the purpose behind the song was it's not. I would like to very much clarify that it's not a sad song. It's a song about relief. It's a song about relief from a dysfunctional relationship for both of them. क्योंकि at times जैसे एक healthy relationship होता है, वैसे एक healthy breakup होना भी जरूरी होता है। तो I would say that I wrote it in that perspective कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन प्यार भी है, लेकिन it's just not the right time to be in a relationship. Okay, you just mentioned Sameer कि एक healthy relationship होना चाहिए तो एक healthy breakup भी होना चाहिए. What do you mean by a healthy breakup? Breakup can breakup be a healthy breakup? Yes, I do believe that कि अभी एक चीज हो चुकी है कि भाई चलो तुम जाने अनजाने में अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि I believe कि when you have somebody in your life, तो ये होता है कि यार प्यार तो होता ही है। चलो कई लोग आजकल ये नए जनरेशन में आई थिंक वो लोग ये बोल देते हैं कि नो आई डोंट लव यू, लेट्स कीप इट कैजुअल एंड ऑल, बट वो फीलिंग तो रहता ही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कि यार एक वो क्या बोलते हैं कनेक्शन, अट्रैक्शन, हाँ वो होता ही है। बट उसके दौरान जो चीजें अलग अलग होती है कि जैसे एक अलग भी जिंदगी जी रहे होते हैं कि क्या बोलते हैं व्हेन यू आर सिंगल यू आर लिविंग द लाइफ ऑन योर ओन, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वो जो रिलेशनशिप का एक लाइफ है वो बन जाता है, और when that comes in the picture तब ये हो जाता है कि ये दोनों जिंदगियों का जब तालमेल नहीं बैठता है, तुम्हारी खुद की और तुम्हारे रिलेशनशिप की, सो दैट इज द टाइम इट टर्न्स डिसफंक्शनल कहीं ना कहीं, और उस वक्त यू कैन स्टे फ्रेंड्स। आई मीन उसके बाद इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ नेम ऑफ अ रिलेशनशिप, कोई मतलब नहीं रहता है उसके बाद, या फिर इवन डोंट स्टे फ्रेंड्स, बट रिलेशनशिप में हो तो वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है उसको रिलेशनशिप कहने का। सो दैट्स हाउ आई बिलीव दैट द हेल्दी ब्रेकअप इज इंपॉर्टेंट।
ओके, सो लाइफ इस रिलेशनशिप की वजह से म्यूजिक आपकी लाइफ में आया या म्यूजिक की वजह से यू लैंडेड अप इनटू अ रिलेशनशिप? दोनों ही गलत होंगे ना ही आई वुड से कि म्यूजिक का आने का रीजन आप ये कह सकते हो बिल्कुल कि आई थॉट दैट लर्निंग गिटार विल मेक मी कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू गर्ल्स, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग. बट फ्रैंकली स्पीकिंग गिटार सीखने के लगभग 3-3.5 साल तक मैंने कोई भी बंदी गिटार की वजह से नहीं पटाई थी. बट पता है समीर, ऐसा कहते हैं कि गिटार से बंदियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं एंड लोग पटाने जाते हैं तो बहुत जल्दी पट जाती हैं बंदियां गिटार से. ऐसा इज दिस अ फैक्ट और व्हाट? आई वुड इन माई एक्सपीरियंस आई वुड से दिस इज अ वेरी बिग ऑफ अ मिथ. ऐसा कुछ नहीं होता है. बहुत ही गलत इल्जाम लगाया जाता है हम लोगों पर. क्योंकि अब क्या करें, अब नाउ इफ यू आर परफॉर्मिंग समवेयर तो लोग देखने आते हैं, चीयर अप करते हैं, और ये चीज आई थिंक कई लोग गलत वे में भी ले लेते हैं कि यार बंदी चीयर अप करने गई है तो बंदा पसंद करती है एंड ऑल दैट. ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स योर फ्रेंड्स आल्सो कम एंड सी यू एंड गलत मतलब निकाल दिए जाते हैं कहीं ना कहीं. तो आई वुड नॉट अग्री विद दैट. बट यस, कभी कभी क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसे मौके भी आए कि जब मैंने लेजिट गिटार का इस्तेमाल करके बंदी पटाई है, तो आई विल नॉट इवन से कि अदरवाइज इज रॉन्ग. Finally, the myth that you have said is actually the correct statement, right? एक तरीके से वो हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि myth ही नहीं हो सकता. It can be also the other way around. Like जैसे mythbusters है तो I mean yes, I'm busted. You can say that. Yeah, the first myth that we busted is कि लड़कियां पटाने के लिए guitar is not important, right, Sameer? Okay. Sameer, lot many stages have come into your life, like ये Populate Society that you founded a Populate Society. What Populate Society is all about? So I'm a big art enthusiast. कई बार मैंने बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो लोकल लेवल पे होते हैं उनको देखा है कि वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं. एंड इट डजंट मैटर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है. कोई गिटार बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, और देयर इज सो मच ऑफ आर्ट एंड एंथुसियाज्म इन देम, सो मच ऑफ पैशन इन देम कि यू फील लाइक कि यार ये लोग कहीं ना कहीं दिखने चाहिए. तो अर्लियर सभी ने ओपन माइक्स तो अटेंड किए होंगे, देखे होंगे या फिर परफॉर्म भी किया होगा. बट उसमें क्या हो जाता है कि ओपन माइक में anyone who wants to perform can perform. Wherein Populate Society is a platform which I created because I wanted to create a platform कि जहाँ पे जो लोग अच्छा कर रहे हैं, who has been through that process of learning and understanding and maybe failing and again trying and succeeding, उन लोगों को I wanted to give the platform and even not just a platform but also a space wherein they can grow, they can perform, they can understand के क्या बोलते हैं audience का reaction क्या है, plus earn money as well. So far it's on very small stage, so of course we are not able to pay so much, but my vision is that someday I'm able to pay them sufficient amount doing that. समीर ऐसे ही होगा. बट वन थिंग कि डू यू डू दिस फॉर फ्री? यू इनवाइट पीपल एंड प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म, यू टीच देम, यू ग्रूम देम. Do you do this for free or you charge something? So I would like to mention something before I answer that. So I don't groom them or teach them anything. It's just that sometimes some artists require some sort of push. कि suppose कुछ लोग गाते बहुत अच्छा है but they are like यार स्टेज पे गा पाऊंगा या गा पाऊंगी या नहीं or something like that. And that push I do provide. या फिर कभी कभी कुछ टेक्निकल नॉलेज जो मुझे होता है कि सपोज कोई इंसान गिटार में कहीं अटका हुआ है कि ये नोट यहाँ पे कैसे ले सकते हैं वो, तो आई हेल्प देम आउट. But no, to answer your question, I don't charge anything for that. I simply invite them. In fact, I try to pay them as well. कि शो के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ उनको पे कर पाऊँ because they are the ones because of which my show is done. Fantastic. Whatever you're doing, ये बहुत ही noble है, and basically we need people like you जो ऐसे stars को और ऐसे performers को, ऐसे artists को invite करे who are actually very deserving but they are not getting platform परफॉर्म अपॉन. कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी हमेशा, क्योंकि मैं एवरीडे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए आर्टिस्ट को मिलता हूँ एंड आई फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स ऑल अराउंड एंड आई फील दैट मेनी ऑफ देम डिजर्व मच मोर ऑफ अ बिगर प्लेटफॉर्म देन
the one that they are performing at. I mean, I would really like to say one thing कि I see open mics these days कि कुछ open mics वाले ये भी करते हैं, like I'm not even kidding, but कुछ open mics वाले ये करते हैं कि they charge the artists to perform, and that is something very very materialistic this sounds. Yes, I mean एक आर्टिस्ट अपना आर्ट भी लेके आए, उसके वो परफॉर्म करने के लिए, उसी की वजह तुम्हारा शो चल रहा है और उसको परफॉर्म करने के लिए तुम लोग पैसा भी ले रहे हो. I mean, and that just breaks my heart, and that feel. Even मुझे भी बहुत बुरा लगा ये सुन के. There are so many platforms that are doing that, and I just I have to say that I completely hate them or disregard them. They should not even exist. And I would really like to tell all the artists that अगर आप लोग चाहते हो perform करना, then stop paying money to perform. You should be getting money to perform. Very noble of you. That's very noble of you, Sameer. And now, since exclusively Sameer Wadia is on Mythbuster, so what audience is looking forward? कि Sameer Wadia हैं. Will Sameer Wadia sing for us or not? Okay, I don't sing that well, but yes, I will sing. Since मुझे पहले बताया गया था, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा एक आध दो लाइन गाने का, ये गाने का. अच्छा, I would also like to say कि मेरा जो गाना रिलीज हुआ है, कैसे चाहूं, उसी के मैं एक दो लाइन्स गाऊंगा. So कोशिश करते हैं. तो इस गाने के जो मेरे मतलब पूरा गाना ही मेरा है, बट इस गाने की लाइंस में भी जो मेरी सबसे फेवरेट लाइंस है वो हो जाती है जो बीच के गिटार पीस के बाद आती है, पल के झुके पल के खुले वाला लाइन. पल के झुके तो तू सामने है मेरे, पल के खुले तू है नहीं कहीं भी, पलकों के साए में देखूं कब तक तुझे, तू सामने ही न हो तो प्यार किससे करूं, प्यार तो बहुत है तेरे मेरे दरमियां, फिर भी डर है कि अलग न कर दे ये दूरियां, दिल को लगा कर दिल टूट जाए ना, डर बस यही है तू रूठ जाए ना, डर. ओके, यहां तक ही. Fantastic. आप मतलब क्या सुरीला गाते हो. मेरे सुर और ताल में हाथ थोड़े तंग हैं, बट एज एन ऑडियंस सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. मेरे मेंटर्स मुझे बहुत क्रिटिसाइज करने वाले वीडियो देखने के बाद, बट थैंक यू सो मच. अभी के लिए आई विल जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट. Here we'll conclude. So this was Sameer Wadia, musician, composer, singer, songwriter, guitarist and bassist. इससे पहले कि हम इस शो के कंक्लूजन पे पहुंचे, लेट मी आस्क Sameer, how was your experience talking to us? How was your experience? कैसा लगा आपको Mythbuster के इस प्लेटफॉर्म पे आके? Well, to be really honest, Rahul, I am really happy about this thing. I would like to really thank you all and the team that you have to invite me on this stage, and this is such an honorable thing for me, and I couldn't be happier. Thank you so much for having me here. So hopefully आपको ये चैट सेगमेंट बहुत ही पसंद आया होगा. सो मैंने पहले भी बताया था, दिस वाज समीर वाडिया, अ म्यूजिशियन एंड कंपोजर हु स्टार्टेड ऑफ लर्निंग इन 2010. ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन 2012 एंड फाइनली he got attached with Audio EO Studios in 2022. he is running his own platform जो कि नए आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देता है टू परफॉर्म ऑन स्टेज along with the incentives, trainings and many more. So many noble things that Sameer is doing. Where you can find Sameer? Description में हमने समीर का इंस्टा हैंडल दे दिया है. You can directly find him and कोई भी queries होगी you can directly DM him up. So how was your entire experience? कैसा लगा आपको ये हमारा ये चैट सेगमेंट? हमें
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर इंस्टाग्राम पेज एंड आवर यूट्यूब चैनल. टिल देन, योर ओन host for this evening, Rahul, is signing off. Bye-bye. Don't be into trends. Don't let fashion own you. Be what you are. The unflinching girl on your favorite new avatar of the Mythbusters. Today, I, Gunjan, have a very special guest. In fact, we are at her studio. Please welcome Himangi from Hem's Makeover. Thank you so much, Gunjan. Himangi, we the Mythbusters are trying to burst some myths regarding fashion, makeover, and as a makeover artist, your opinions are what our viewers are looking forward to. And before we move ahead, from our entire team, we congratulate you on your latest international assignment. Please tell us something about it. Thank you so much, Gunjan. और रिसेंटली मैंने जो इंदौर में शूट हुआ था, ग्लैमर एंड सुपर इंटरनेशनल मॉडल, जिसमें 30 मॉडल्स का शूट था, वो उसमें जिनका मेकअप मैंने किया था, वो इंटरनेशनल मॉडल इंटरनेशनल मॉडल 2023 सिलेक्ट हुए. Wow, congratulations, Himangi. तो हिमांगी, एक बार आप प्लीज बता सकते हो ये क्या असाइनमेंट था, किस चीज के लिए अभी आपने इंटरनेशनल शूट किया? ग्लैमर एंड सुपर मॉडल ऑफ इंडिया जो है, उनका शूट था वहाँ पे, जो भी इंटरनेशनल मॉडल है 2023 की, वो सिलेक्ट हो रहा था वहाँ पे. और मैंने जिनका मेकअप किया था कशिश रूपानी, तो वो सिलेक्ट हुई है 2023 की इंटरनेशनल मेकअप मॉडल. Once again, heartiest congratulations. Thank you so much. As a makeover artist, सबसे पहली चीज जब एक क्लाइंट या एक पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर आते हैं, what are the things जो आपके माइंड में रन होता है? थोड़ा सा कुछ बताइए. अगर मुझे कोई इंस्टा थ्रू या किसी के कॉन्टैक्ट थ्रू अगर मुझे कोई कॉन्टैक्ट करता है, तो मैं उनको सबसे पहले यही कहती हूँ कि आपने मेरा इंस्टा देखा है, तो ये गेट आइडिया कि मेकअप में देती हूँ. और तो ऐसे ही क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो उनका चॉइस मेरे मेकअप से मैच करता है. तो जब भी क्लाइंट आता है तो उनका स्टाइल क्या है, वो क्या कैरी कर पाएंगे, क्या माइंड में है उनके कि इनको किस तरह से लगना है, वो सारा माइंड में रखना पड़ता है. और क्या एक्चुअल में उनका स्किन टाइप है, क्या फीचर्स है उनके, और वो कैरी कर क्या कितने तक कैरी कर पाएंगे, वो सब माइंड में रहता है. आप हेम्स मेकओवर में 2 सेगमेंट्स में हैं. आई थिंक फर्स्ट सेगमेंट में आप खुद करती हैं. सेकंड सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए. फर्स्ट सेगमेंट में मैं एज अ प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ब्राइडल्स मेकअप करती हूँ. सेकंड सेगमेंट में एज अ एजुकेटर इन मेकअप, उसमें भी हूँ मैं. तो लैक्मे में भी मैं एज अ मेकअप ट्रेनर जॉब कर चुकी हूँ, और अभी मैं अपने खुद के क्लासेस रन करती हूँ. तो जब भी स्टूडेंट मेरे पास आता है तो सबको ऐसा लगता है मेकअप मतलब जस्ट बहुत सारी कलरफुल आइज कर दी और ग्लिटर वगैरह लगा दिया, आइज से काम करना मतलब मेकअप होता है, ऐसे स्टूडेंट्स का मानना होता है. बट ऐसे नहीं होता है. तो पूरा स्टूडेंट का विजन क्लियर करना पड़ता है कि आप किसको तैयार कर रहे हो. कल वो हजारों लोगों के सामने, 1000 लोगों की शादी में होंगे, उसके सामने वो खड़ी होने वाली है. आप काली पीली मुझे आइज नहीं कर सकते आप इसको. मुझे ऐसे कहना है कि आप ऐसा मेकअप दो जो आप अपनी शादी में आप खुद कैरी कर सकते हो. क्या वो जजमेंट रख के आपने सामने वाले. हिमांगी, आजकल न्यूड का या बेयर मिनिमलिस्टिक मेकअप का ट्रेंड है. व्हाट इज इट एक्चुअली? न्यूड मेकअप या नेचुरल मेकअप जो भी है, उसमें उसकी क्लाइंट जब आता है तो वो इस तरह से कहती है हमें नेचुरल मेकअप चाहिए, तो उस हिसाब से कॉस्ट भी कम रखो. पर ऐसा नहीं होता है. नेचुरल मेकअप में आपका टेक्निक भी सेम होता है, आपके प्रोडक्ट्स भी हाईली कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, और आपका टाइम भी सेम उतना ही जाता है. जस्ट डिफरेंस होता है आपके कलर चॉइस का. वो आपके स्किन टोन के हिसाब से आपका कलर चॉइस होता है जो आपके स्किन के साथ मैच करे और ज्यादा उभर के ना दिखे. दैट इज नेचुरल मेकअप. तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल मेकअप है तो कम पैसे, नहीं.
क्योंकि नेचुरल मेकअप करने के बाद भी आप 8 घंटे बाद भी वो सेम वैसे ही मेकअप दिखना जरूरी है। देखा, हमने एक मिथ बस्ट किया कि न्यूड मेकअप या नेचुरल मेकअप डजंट मीन लेस प्रोडक्ट और लेस टाइम और लेस कॉस्ट और मनी। और प्रोफेशनली थीम्स मेकओवर कब हुआ, कैसे हुआ, प्लीज उसको बताओ। मैं इस प्रोफेशन में 6 साल से हूँ और स्टार्ट कैसे हुआ ये थोड़ा सैड स्टोरी है। आई लॉस्ट माई बेबी और इसके साथ फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगी और फिर हस्बैंड को ऐसे लगा कि आप कुछ आर्ट में चले जाओ, कुछ नया सीखने भी मिलेगा और मिलेंगे फ्रेंड्स वहाँ मिलेंगे, फिर लेडीज मिलेंगी, बातें होगी, आपका मन लग जाएगा इस हिसाब से। तो मुझे इसमें करियर बनाना है ये सोच के तो मैंने बिल्कुल भी मेकअप ज्वाइन नहीं किया था। फिर मैं मेकअप ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा और मेकअप पहले नहीं किया था जब मैं मेकअप कोर्स सीखने गई थी तब। और जब भी मैं मेकअप करती तो हमेशा मैं डरी जाती थी कि ऐसे दिखेगा, ये इतना दिखता है, ये उतना दिखेगा इस तरह से। बट नाउ अभी मैं अपना मेकअप देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई डरेगा नहीं मेकअप देख के, कि उनको भी डाइस होगा कि हाँ थैंक यू। एंड यू आर अ सर्वाइवर। आई नो इट्स नॉट इजी बट आई थिंक that baby has blessed you with pain. She's a mom of a, how old is it? 12-year-old, and she looks gorgeous. And आपको देख के I'm sure बहुत सारी females connect करेगी, and they will also convert their pain into and thank you Himangi for being on this show, or rather inviting me over to this beautiful studio. At the end of this video, I'll share a glimpse of a fabulous studio where she does her magic. Also, I'll be sharing her Instagram handle along with the Facebook handle that she's dealing with. You can contact her, you can DM her for any queries or for missing some parts. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Gunjan. I'm really impressed. So until next time, keep listening to this Buster. Don't forget to share, like and subscribe. Until next time, it's Gunjan, your unseen singer. Bye-bye. The beginning of wisdom is the beginning of supernatural power. Yes, it's your The Unflinching Girl on yet another interesting chat show on your favorite channel, The Mythbusters. Well, thank you for so much of love shared on our last interview and chat show, and I hope this time it's gonna take you on a next level, because today the guest on our chat show is a prominent author, and she is a paranormal expert having the clairvoyance levels of all the stages activated in her since childhood. She is a Rotarian, a UN volunteer, a mentor of change with Atal Innovation Mission, Niti Aayog, and an eminent member of the Ethnic Committee of the CTC Bone Marrow Transplantation Center. This lady is a woman on a mission. She writes and delivers one book every month, and today she is the proud author of 61 books. Her book Jeevan Sanwarne Ke Mantra is dedicated and written on the prisoners. That is why this book has been distributed free of cost in all the jails of India. She has also bagged many national and international awards for the work she has accomplished. She also hosts the Women of Substance Digital Awards every year on Women's Day, that is the 8th of March, for felicitating inspiring women across the globe. Today she is joining us from Mumbai. So I, Gunjan, the Unflinching Girl, proudly present Dr. Manisha Anvekar. Ma'am, please share your thoughts on the paranormal and your experiences with it. Namaste. First of all, let me extend my heartfelt thanks to Ms. Gunjan and your beautiful team for giving me this opportunity. Regarding the paranormal, I have these experiences each day, every day, because paranormal is basically a part of us. They live with us, they are very much there. They don't go anywhere, like, you know, the spirits are always there around us. बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि स्पिरिट्स को वॉर्ड ऑफ करने के लिए क्या करना चाहिए. तो आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. आप अपने घर में रह रहे हैं बहुत सालों से, आपका घर है वो,
और वन फाइन डे मैं आ जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भाई ये तो मेरा घर है, एंड आई स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन इट एंड बड़े आराम से रहने लगती हूँ. इस केस में व्हाट विल यू डू? क्या आप मेरी पूजा करेंगे, मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे? नो. व्हाट यू विल डू? यू विल ट्राई टू रिमूव मी फ्रॉम योर अबोर्ड. दैट्स व्हाट स्पिरिट्स डू. द ओनली डिफरेंस इज वी कैन नॉट सी देम, बट दे कैन सी फील अस. इसलिए कभी भी स्पिरिट्स को वॉर्ड ऑफ करने का मत सोचिए. उनको उनके ही घर से हमें भगाना नहीं चाहिए. एंड नो स्पिरिट्स आर इवल एक्चुअली. सिर्फ उनके कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, उनके कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह जाते हैं, इसलिए वो वहाँ पे रह जाते हैं. दे आर बेसिकली नीदर इन देयर स्पिरिचुअल प्लेस नॉर इन द मटीरियल. इसलिए हमें उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए. वी कैन वेरी वेल को एग्जिस्ट एक्चुअली, एंड दैट्स हाउ वी लिव. तो इंस्टेड ऑफ वार्डिंग देम ऑफ, उनको प्रे करिए. जब भी आप किसी नई प्रॉपर्टी में जाएं, कोई भी नई जगह पे जाते हैं, तो आप उनसे बोलिए कि भाई को एग्जिस्ट करेंगे, हम भी आराम से रहेंगे, आप भी रहिए. हम ट्राई करेंगे कि हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ ना हो जाए. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू को एग्जिस्ट. And they communicate with us through various ways. Sometimes they send us messages, sometimes through angel numbers, sometimes they directly communicate with us. Like मेरे में all 8 clairs are very heightened. So I can feel them, I can see them, I can hear them talking, I can smell them. There are totally 8 clairs, तो वो सारे heightened हैं मुझ में. तो paranormal is very much is a normal thing and is a part of our lives. That's how it is. What is Spiritual Connect? How did this happen? How did you conceive this idea in 1992 when this beautiful organization came into being? So regarding Spiritual Connect, I founded Spiritual Connect on 5th of August 1992, and this is how I came into spirituality. Is basically all the credit goes to my paranormal experiences. So whatever I remember I was barely a girl of 5, and I used to see astral bodies, and they used to call me toward them, and they used to talk to me. And I used to feel very scared. Oh my God, like who these people are and why are they calling me? So I used to rush to my room and create a bubble around me. I used to take the name of my Lord and just chant his name. And I used to feel very safe in that bubble. So this is how I came into conscious spirituality. I did not know at that time that this is called meditation. But slowly I started feeling the benefits, and I started teaching meditation to my neighborhood children when I was barely 10 years old. And when I was 20, I started teaching spiritual parenting. And then came a time when I thought that I should formalize what I do. So I founded my organization Spiritual Connect. Please remember Connect with a K and not with a C. Apart from these 2 classes, I also give prescription yoga classes. Prescription yoga classes are a little different from normal yoga classes, where everybody is taught all the asanas. In prescription yoga, only those asanas are taught that are required for my client. Asanas are basically physical exercises. So in prescription yoga classes, I also teach the other 4 arms of yoga. Apart from this, I go to schools, colleges, and corporates to give various seminars, like on stress management, on in schools and colleges, like how to get good marks in exams, and there are various things. Because spirituality is a part of our very being. It's not different from us. So when you cook, when you serve, when you eat, when you study, when lovers come together, when you do anything, like it's all connected to spirituality. So we also have a few humanitarian initiatives. One is called Stop Suicides, Life is for Living. That is to prevent suicides. One is Project Purna to empower Indian girls and women. Another is Aroha Asha, a ray of hope, in which I give free counseling session. Manisha ma'am, your journey as an author, how did this idea, like 1 book, 1 month, how did it all happen? How did it all start? So my book writing journey has been very interesting. This is the 5th year I am writing 1 book every month, and not only writing, I also publish 1 book every month. So my journey started in 2014. My first book was Chakra View, a peek into the amazing world of chakras.
I took almost 1.5 years to write the book, but when finally I decided to publish it, most of the work was done only within 15 to 20 days. Then came my second book, Jeevan Sawarne Ke Mantra. It also was written in 2 weeks' time. And in 2017 December, I thought of creating Antakaran inner guidance cards and guidance book. So this was done within 7 days' time. So it was launched in January 2018, and from here started my journey, one of its kind journey of writing one book every month. So by the end of this year, December 2022, I would have finished 60 books in one book every month, and a total of 63 books so far. If you're comfortable, please share some paranormal, some scary, some spooky experience that you have occurred and felt recently. Yeah, I have so many paranormal experiences. तो share करने का बोलूँ तो I think I can share this experience with you. Some 15 years back, my husband and my daughters and me, we all had been to a place in rural Maharashtra. काफ़ी ब्यूटीफुल सी प्लेस है, लेकिन इट्स सच ए स्मॉल विलेज कि वहाँ पे ऐसे एमिनिटीज़ नहीं है ज़्यादा कुछ. तो उस रिजॉर्ट में हम लोग रुके हुए थे, एंड दिन भर घूमने के बाद में वी वर डेफिनेटली टायर्ड. तो रात में सोते सोते कुछ 11-11:30 हो गया था. एंड आफ्टर सम टाइम, आई थिंक 1 आध घंटा निकल गया होगा, हम सब लोग सोए थे आराम से. आई हर्ड बहुत ज़ोर ज़ोर का जैसे कोई बैंग कर रहा है ऑन द डोर ऑफ द रूम, एंड मेरी नींद खुल गई उससे. तो मैं थोड़ी देर ये करती रही कि अपना ही डोर बज रहा है कि आवाज़ कहीं और से आ रही है, बट आई कुड मेक आउट कि अपना डोर बज रहा है, क्योंकि वो हिल भी रहा था थोड़ा सा. सो आई गॉट अ लिटिल स्केर्ड लाइक कि ये क्या है. तो आई थॉट मे बी सम टूरिस्ट लाइक अस, उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी, बट आई कुड मेक आउट कि ये नॉर्मल वाली आवाज़ नहीं है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस के बाद में मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल है कि पैरानॉर्मल है. तो फिर भी मैं थोड़ी देर वेट करती रही. देन आई वोक माई हस्बैंड अप. मैं उनको बोली कि देखें क्या दरवाज़ा खोल के कौन है, लाइक उनको क्या चाहिए. तो मैं उन्हें पूछा क्या हुआ. तो आई सेड कि समबडी इज़ बैंगिंग नो. तो बोलते कि नहीं, डोर पे कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है. आई सेड अरे इतने ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं और आपको आवाज़ नहीं आ रही है. तो बोले कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही. एंड आई वॉज वंडरिंग कि कैसे हो सकता है, मेरे तो कान बिल्कुल बंद हो रहे हैं. हाउ इज ही सेइंग कि इनको आवाज़ नहीं आ रही. ये सब सुन के बच्चे भी उठ गए. उन्होंने कहा मिडिल ऑफ द नाइट मम्मी डैडी क्या चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे. तो उन्होंने भी पूछा मम्मा व्हाट हैपेंड. आई सेड कि नथिंग बट समबडी इज बैंगिंग ऑन द डोर. तो बच्चे बोले कि कोई नहीं है, दरवाजे से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कहीं भी नहीं है. एंड आई सेड ये सब लोग तो पागल हैं, इनको आवाज़ ही नहीं आ रही है बिल्कुल. एनीवे आई टोल्ड देम कि आप लोग सो जाओ. फिर मैंने कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह किया, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक ये बैंगिंग होती रही हमारे डोर के ऊपर, एंड उसके बाद में जाके कहीं वो शांत हुआ. That was Dr. Manisha Anvekar on your favorite channel, The Mythbusters, with none other than Gunjan, the unflinching girl. So how did you like this video? Write in the comment section. Don't forget to press the bell icon so that you don't miss out on any of the notifications, and you know the drill. Like, share and subscribe Mythbusters on your favorite Instagram page. So this is Gunjan, the unflinching girl, signing off, and on behalf of the entire team of Mythbusters, Rahul and Akriti, again extending a warm, heartfelt thank to Dr. Manisha Anvekar. Until next time, toodles. इवनिंग, नमस्कार, आदाब. तो मैं हूं आपका होस्ट फॉर द इवनिंग राहुल, और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मिथबस्टर के इस चैट सेगमेंट में, जहां पे हम बुलाते हैं हमारे सेलिब्रिटीज को और हम उनसे करते हैं कुछ बातें. तो इस बार के जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, ही इज अ बिग टाइम म्यूजिशियन, राइट. ही इज नॉट ओनली म्यूजिशियन, ही इज अ कंपोजर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट, बेसिस्ट. जी हाँ, अ वन मैन आर्मी. तो द गेस्ट फॉर दिस इवनिंग इज समीर वाडिया. तो इससे पहले कि हम समीर के बारे में कुछ जाने, मैं आपको पहले भी बता देना चाहता हूं कि समीर इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन. फिलहाल के लिए ही इज एसोसिएटेड विद ऑडियो ईवो
studios and he owns a pop lit society. हम बातें जाने के पहले सुनते हैं समीर से. तो hi Sameer, how are you? Hey, hi Rahul. I'm doing really good. How are you doing, man? I'm fantastic. I'm fantastic, Sameer. So, how it all started, Sameer? Like music is not my cup of tea. तो सुर ताल से थोड़ा सा मेरी हाथ तंग है उसमें. But since you are a very good composer, so मैं जानना चाहता हूँ कि how it all started. So basically हुआ था ये कि साल था 2010 का और हम हो चुके थे फेल 12th में. हम ऐसे क्या बोलते हैं जोश में साइंस तो ले लिए पर काफी और भी साइंस स्टूडेंट्स की तरह हम खत्म नहीं कर पाए और डांट तो पड़ी थी घर से लेकिन रिपीट भी करना था क्योंकि बोल दिया था पापा ने कि भाई खत्म तो करना पड़ेगा एजुकेशन. तो हमने कहा कि ठीक है भाई हम करेंगे बिल्कुल. और हमारे केमिस्ट्री क्लास के एग्जैक्ट नीचे था गिटार क्लास. तो देखा वो और स्कूल तो होती नहीं थी तो हमने सोचा कि क्यों ना पापा को अप्रोच किया ही जाए कि एक आध हॉबी भी रख लेने दो. अभी पूरा साल स्कूल तो नहीं जाना है तो सिर्फ पढ़ाई से तो बोर हो जाएंगे. तो कई मिन्नतों के बाद पापा ने बोला ठीक है बेटा कर लो. और दूसरा रीजन ये भी था कि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हुआ करता था. लड़कियां थोड़ा मुझसे लड़कों से बात तक नहीं होती थी टू बी रियली ऑनेस्ट. अरे टू बी रियली ऑनेस्ट लाइक इट वाज सच अ डिजास्टर दोस डेज कि मैं कभी भी ऐसा सोचता था कि मैं कभी कोई दोस्त बना भी पाऊंगा या नहीं. ये थिंकिंग में आ गया था. और एक चीज मैंने नोटिस की है चाहे हमारी फिल्मों में हो या फिर रियल लाइफ में हो या कहीं पर भी कि जहां जहां गिटारिस्ट होता है ना जो बंदों के पास गिटार होता है ना वहां लड़की जरूर होती है साथ में. ये मैंने भी नोटिस किया है. या तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए कि शायद गिटार के बहाने एक आध बंदी से बात ही कर ली जाए. तो गए हम ऐसे जोश में गिटार सीखने. बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ऐसा हो गया कि बहुत मजा आने लगा. आई मीन द म्यूजिक इटसेल्फ बिकेम समथिंग आई फेल इन लव विद. सो ढूंढने तो मैं शायद बंदी निकला था लेकिन क्या बोलते हैं हमसफर मिल गया. हाँ कहीं ना कहीं एक हमसफर मिल गया काइंड ऑफ लाइफ के लिए पूरा. एंड आई कुड नॉट बी मोर थैंकफुल फॉर दिस ग्रेट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ दैट आई गॉट समहाउ. सो ढूंढने निकले थे बंदी बट बंदी मिली या नहीं मिली? बंदी गिटार से तो बहुत ही कम ही मिली है जीवन में. बट ये मिथ ही है कि गिटारिस्ट अगर तुम्हारे पास गिटार है तो बंदी हो सकती है. यूजुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि सच हो. पर हाँ कह सकते हो कि कभी कभार तो ऐसा हुआ है लाइफ में कि हाँ गिटार सुन के इम्प्रेस तो हुई है कभी ना. बेसिकली उसके बाद ये हुआ कि भाई गिटार सीखना शुरू किया एंड देन धीमे धीमे गिटार से मेरा फोकस म्यूजिक पे शिफ्ट होने लगा क्योंकि सिर्फ गिटार बजाने से आई वाज जस्ट बीइंग एन अकम्पनिस्ट एंड ऑल दैट. बट स्लोली एज आई स्टार्टेड कंपोजिंग मुझे समझ में आने लगा कि किस तरह से मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स को डिफरेंट काइंड ऑफ राइम स्कीम्स में यूज करके कुछ ना कुछ ट्यून डालकर मैं गाना बना सकता हूँ. तो धीमे धीमे सीखा वो और फिर कोशिश करते गया एंड फिर अलग अलग बैंड्स में परफॉर्म किया. अलग अलग बैंड्स में अलग अलग रोल्स में परफॉर्म किए. लेटर ऑन आई ऑल्सो तो इन 2011 बेसिकली आई स्टार्टेड लर्निंग बेस एज वेल बेस गिटार. और उसके बाद बेस गिटार भी सीखना चालू कर दिया. तो कई बैंड्स में आई हैव most of the bands to be really honest I have been a bassist. Even if I'll start my own band I would like to be a bassist because yes that is something that's an instrument I love really so much. तो वहां से शुरुआत हुई जर्नी की और फिर आगे बढ़ते गए. फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में काफी सारे फेस्ट में परफॉर्म किया. काफी सारे बैंड्स के साथ भी कोलैबोरेट किया. काफी सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया. और फिर जिंदगी चलती गई. म्यूजिक चलता गया. फ्रीलांस शोज चलते गए. और अब ऐसा टाइम आया कि आई एम रिलीजिंग माई ओन सॉन्ग्स. तो लगभग 10-12 साल का जर्नी रहा है. दैट इज हाउ आई हैव स्टार्टेड एंड हाउ इट इज गोइंग सो फार. ओह फैंटास्टिक. तो बेसिकली ढूंढने निकले थे बंदी मिल गया गिटार. सो दैट्स गुड ना. आपने अपने अंदर के एक्स फैक्टर को ढूंढा तराशा एंड यू नो इट केम आउट वेरी वेल. सो आज आप उस मकाम पे पहुंचे हुए हो कि आप अपने एक्स फैक्टर को नेशनल प्लेटफॉर्म पे रख सकते हो. आप अपने एक्स फैक्टर को लोगों के सामने रख सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल समीर अ बिग कंग्रेचुलेशंस क्योंकि मैंने सुना है कि a few days back you have released your own composition, right? Yes.
That's completely true. It's called कैसे चाहूं, and ये गाना मैंने लगभग 10 साल पहले लिखा था. Oh my God, 10 years back. 10 years. And हुआ ऐसा कि उस वक्त तो जब लिखा था तो I had just come out of a long distance relationship. बट स्लोली जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, मैं समझता गया रिश्तों को, जिंदगी थोड़ा मुझे समझाती गई, मैं म्यूजिक को समझता गया. वैसे ही आई केम टू रियलाइज दैट डिस्टेंस कैन नॉट जस्ट बी फिजिकल. कभी कभी डिस्टेंस तब भी हो सकता है कि जब आप किसी के साथ एक रूम में हो या फिर एक साथ हो, और वो इनफैक्ट ज्यादा पेनफुल होता है. तो अभी इफ यू आस्क मी दैट ये सॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करता है, सो इट रिप्रेजेंट्स द आफ्टरमैथ ऑफ अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप. इंटेंशनली नहीं बोलूंगा कि वो हुआ है डिसफंक्शनल या फिर किसी एक की वजह से नहीं हुआ है. इट्स जस्ट कि दोनों लोगों की वजह से, कुछ ना कुछ चीजों की वजह से वो दोनों एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और वो टाइम पे आई थिंक द राइट डिसीजन. समीर, when you started writing this, you were into a relationship या ब्रेकअप के बाद आपने इस सॉन्ग को कंपोज करना शुरू किया? I started composing the song in August 2012. तो उस वक्त अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि वो ब्रेकअप वाला फेज चल रहा था या फिर ब्रेकअप हो चुका था. तो इट्स लाइक ये सीन था. बट आई बेसिकली द पर्पस बिहाइंड द सॉन्ग वाज कि इट्स नॉट, आई वुड लाइक टू वेरी मच क्लैरिफाई दैट इट्स नॉट अ सैड सॉन्ग. इट्स अ सॉन्ग अबाउट रिलीफ. इट्स अ सॉन्ग अबाउट रिलीफ फ्रॉम अ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ देम. क्योंकि एट टाइम्स जैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, वैसे एक हेल्दी ब्रेकअप होना भी जरूरी होता है. तो I would say that I wrote it in that perspective कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन प्यार भी है, लेकिन it's just not the right time to be in a relationship. Okay, you just mentioned Sameer कि एक healthy relationship होना चाहिए तो एक healthy breakup भी होना चाहिए. What do you mean by a healthy breakup? Breakup can breakup be a healthy breakup? Yes, I do believe that कि अभी एक चीज हो चुकी है कि भाई चलो तुम जाने अनजाने में अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आई बिलीव कि व्हेन यू हैव समबडी इन योर लाइफ, तो ये होता है कि यार प्यार तो होता ही है. चलो कई लोग आजकल ये नए जनरेशन में आई थिंक वो लोग ये बोल देते हैं कि नो आई डोंट लव यू, लेट्स कीप इट कैजुअल एंड ऑल. बट वो फीलिंग तो रहता ही है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कि यार एक वो क्या बोलते हैं कनेक्शन, अट्रैक्शन, हाँ वो होता ही है. बट उसके दौरान जो चीजें अलग अलग होती है कि जैसे एक अलग भी जिंदगी जी रहे होते हैं कि क्या बोलते हैं, व्हेन यू आर सिंगल यू आर लिविंग द लाइफ ऑन योर ओन. व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वो जो रिलेशनशिप का एक लाइफ है वो बन जाता है. और व्हेन दैट कम्स इन द पिक्चर, तब ये हो जाता है कि ये दोनों जिंदगियों का जब तालमेल नहीं बैठता है, तुम्हारी खुद की और तुम्हारे रिलेशनशिप की, सो दैट इज द टाइम इट टर्न्स डिसफंक्शनल कहीं ना कहीं. और उस वक्त यू कैन स्टे फ्रेंड्स. आई मीन उसके बाद इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ नेम ऑफ अ रिलेशनशिप, कोई मतलब नहीं रहता है उसके बाद. या फिर इवन डोंट स्टे फ्रेंड्स, बट रिलेशनशिप में हो तो वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है उसको रिलेशनशिप कहने का. सो दैट्स हाउ आई बिलीव दैट a healthy breakup is important. Okay, so life, इस रिलेशनशिप की वजह से म्यूजिक आपकी लाइफ में आया या म्यूजिक की वजह से यू लैंडेड अप इनटू अ रिलेशनशिप? दोनों ही गलत होंगे. ना ही आई वुड से कि म्यूजिक का आने का रीजन आप ये कह सकते हो बिल्कुल कि आई थॉट दैट लर्निंग गिटार विल मेक मी कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू गर्ल्स. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग. बट फ्रैंकली स्पीकिंग गिटार सीखने के लगभग 3-3.5 साल तक मैंने कोई भी बंदी गिटार की वजह से नहीं पटाई थी. बट पता है समीर, ऐसा कहते हैं कि गिटार से बंदियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं एंड लोग पटाने जाते हैं तो बहुत जल्दी पट जाती हैं बंदियां गिटार से. ऐसा इज दिस अ फैक्ट और व्हाट? I would, in my experience, I would say this is a very big of a myth. ऐसा कुछ नहीं होता है. बहुत ही गलत इल्जाम लगाया जाता है हम लोगों पर. क्योंकि अब क्या करें, अब नाउ इफ यू आर परफॉर्मिंग समवेयर तो लोग देखने आते हैं, चीयर अप करते हैं, और ये चीज आई थिंक कई लोग गलत वे में भी ले लेते हैं कि यार बंदी चीयर अप करने गई है तो बंदा पसंद करती है एंड ऑल दैट. ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स योर फ्रेंड्स आल्सो कम एंड सी यू एंड गलत मतलब निकाल दिए जाते हैं कहीं ना कहीं. तो आई वुड नॉट अग्री विद दैट. बट यस, कभी कभी क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसे मौके भी आए कि जब मैंने लेजिट गिटार का इस्तेमाल करके बंदी पटाई है, तो आई विल नॉट इवन से कि अदरवाइज इज रॉन्ग. Finally, the myth that you have said is actually the correct statement, right?
एक तरीके से वो हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मिथ ही नहीं हो सकता, इट कैन बी ऑल्सो द अदर वे अराउंड, लाइक जैसे मिथ बस्टर्स है, तो आई मीन यस आई एम बस्टेड, यू कैन से दैट। Yeah, the first myth that we busted is कि लड़कियां पटाने के लिए गिटार is not important, right समीर? Okay, Sameer, lot many stages have come into your life, like ये Populate Society that you founded a Populate Society. What Populate Society is all about? So I'm a big art enthusiast. कई बार मैंने बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो लोकल लेवल पे होते हैं उनको देखा है कि वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बजाते हैं, एंड इट डजंट मैटर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, कोई गिटार बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, और देयर इज सो मच ऑफ आर्ट एंड एंथुसियाज्म इन देम, सो मच ऑफ पैशन इन देम कि यू फील लाइक कि यार ये लोग कहीं ना कहीं दिखने चाहिए। तो अर्लियर सभी ने ओपन माइक्स तो अटेंड किए होंगे, देखे होंगे या फिर परफॉर्म भी किया होगा, बट उसमें क्या हो जाता है कि ओपन माइक में anyone who wants to perform can perform, wherein Populate Society is a platform which I created because I wanted to create a platform कि जहाँ पे जो लोग अच्छा कर रहे हैं, who has been through that process of learning and understanding and maybe failing and again trying and succeeding, उन लोगों को I wanted to give the platform and even not just a platform but also a space wherein they can grow, they can perform, they can understand के क्या बोलते हैं audience का reaction क्या है, plus earn money as well. So far it's on very small stage, so of course we are not able to pay so much, but my vision is that someday I'm able to pay them sufficient amount doing that समीर ऐसे ही होगा, बट वन थिंग कि डू यू डू दिस फॉर फ्री? यू नो, यू इनवाइट पीपल एंड प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म, यू टीच देम, यू ग्रूम देम. Do you do this for free or you charge something? So I would like to mention something before I answer that. So I don't groom them or teach them anything. It's just that sometimes some artists require some sort of push. कि suppose कुछ लोग गाते बहुत अच्छा है but they are like यार स्टेज पे गा पाऊंगा या गा पाऊंगी या नहीं और something like that. And that push I do provide. या फिर कभी कभी कुछ टेक्निकल नॉलेज जो मुझे होता है कि सपोज कोई इंसान गिटार में कहीं अटका हुआ है कि ये नोट यहाँ पे कैसे ले सकते हैं वो, तो आई हेल्प देम आउट. But no, to answer your question, I don't charge anything for that. I simply invite them. In fact, I try to pay them as well. कि शो के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ उनको पे कर पाऊँ because they are the ones because of which my show is done. Fantastic. Whatever you're doing, ये बहुत ही noble है, and you know, basically we need people like you जो you know ऐसे stars को और ऐसे performers को, ऐसे artists को invite करे, who are actually very deserving, but they are not getting platform to perform upon. कोशिश बिल्कुल जारी रहेगी हमेशा, क्योंकि मैं एवरी डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नए आर्टिस्ट को मिलता हूँ, एंड आई फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स ऑल अराउंड, एंड आई फील दैट many of them deserve much more of a bigger platform than the one that they are performing at. I mean I would really like to say one thing कि I see open mics these days कि कुछ open mics वाले ये भी करते हैं, like I'm not even kidding, but कुछ open mics वाले ये करते हैं कि they charge the artists to perform, and that is something very you know, very materialistic this sounds. Yes, I mean एक आर्टिस्ट अपना आर्ट भी लेके आए, उसके वो परफॉर्म करने के लिए, उसी की वजह तुम्हारा शो चल रहा है और उसको परफॉर्म करने के लिए तुम लोग पैसा भी ले रहे हो. I mean, and that just breaks my heart, and that feels. Even मुझे भी बहुत बुरा लगा ये सुन के. There are so many platforms that are doing that, and I just I have to say that I completely hate them or disregard them. They should not even exist. And I would really like to tell all the artists that अगर आप लोग चाहते हो perform करना, then stop paying money to perform. You should be getting money to perform. Very noble of you. That's very noble of you, Sameer. And now, since exclusively Sameer Wadia is on Mythbuster, so what audience is looking forward? कि Sameer Wadia हैं. Will Sameer Wadia sing for us or not? Okay, I don't sing that well, but yes, I will sing. Since मुझे पहले बताया गया था, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा एक आध दो लाइन गाने का, ये गाने का. अच्छा, I would also like to say कि मेरा जो गाना रिलीज हुआ है कैसे चाहूं, उसी के मैं एक दो लाइन्स गाऊंगा. So कोशिश करते हैं. तो इस गाने के जो मेरे मतलब पूरा गाना ही मेरा है, बट इस गाने की लाइंस में भी जो मेरी सबसे फेवरेट लाइंस है वो हो जाती है जो बीच के गिटार पीस के बाद आती है, पल के झुके पल के खुले वाला लाइन.
पल के झुके तो तू सामने है मेरे, पल के खुले तू है नहीं कहीं भी, पलकों के साए में देखूं कब तक तुझे, तू सामने ही न हो तो प्यार किससे करूं, प्यार तो बहुत है तेरे मेरे दरमियां, फिर भी डर है कि अलग न कर दे ये दूरियां, दिल को लगा कर दिल टूट जाए ना, डर बस यही है तू रूठ जाए ना, डर। ओके, यहां तक ही। फैंटास्टिक। आप मतलब क्या सुरीला गाते हो। मेरे सुर और ताल में हाथ थोड़े तंग हैं, बट एज एन ऑडियंस सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मेंटर्स मुझे बहुत क्रिटिसाइज करने वाले वीडियो देखने के बाद, बट थैंक यू सो मच। अभी के लिए आई विल जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट। Here we'll conclude. So this was Sameer Wadia, musician, composer, singer, songwriter, guitarist and bassist. इससे पहले कि हम इस शो के कंक्लूजन पे पहुंचे, लेट मी आस्क समीर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टॉकिंग टू अस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको मिथबस्टर के इस प्लेटफॉर्म पे आके? Well, to be really honest, Rahul, I am really happy about this thing. I would like to really thank you all and the team that you have to invite me on this stage, and this is such an honorable thing for me, and I couldn't be happier. Thank you so much for having me here. So hopefully आपको ये चैट सेगमेंट बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने पहले भी बताया था, दिस वाज समीर वाडिया, a musician and composer who started off learning in 2010. He started performing in 2012 and finally he got attached with Audio EO Studios in 2022. He is running his own platform जो कि नए आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देता है to perform on stage along with the incentives, trainings and many more. So many noble things that Sameer is doing. Where you can find Sameer? Description में हमने समीर का इंस्टा हैंडल दे दिया है. You can directly find him and कोई भी queries होगी you can directly DM him up. So how was your entire experience? कैसा लगा आपको ये हमारे ये चैट सेगमेंट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, and do not forget to like, share and subscribe our Instagram page and our YouTube channel. Till then, your own host for this evening, Rahul, is signing off. Bye-bye.